Good morning to all of you. Am I audible? Hemant, am I audible? Am I audible, Vipin? Okay. Good morning, good morning. So today we are going to discuss a very important theme in ancient Indian history, and that is sources, okay, for the reconstruction of ancient Indian history. And this topic is important because in the last 4 to 5 years, there are at least two or three questions from this topic. That's why it is important, okay. So we are going to enter the topics, but before I start the discussion, first I will make it clear that if we talk about prelims question, अगर हम prelims की बात करें or mains, generally what we do is that while solving the questions, we follow this approach that generally we see the question and then we proceed. Clear? In prelims also, in mains also. But now I am going to do a detailed discussion of the topic so that when you see the question, so after seeing the question, when you start thinking on that question, when you observe the nature of the question and then you proceed, so there is a greater probability that your answer is correct. In prelims also and in mains also, you are going to cater the needs of the question. So this is a very important thing. Prelims में भी कि question को देखने के बाद think और observe. That is a important part. Mains में भी क्वेश्चन देख के घबराना नहीं है, थिंक एंड ऑब्जर्व, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट. बट टू थिंक एंड ऑब्जर्व वी नीड टू डिस्कस द थीम्स इन डिटेल. इज वेरी सिंपल थिंग. अगर हम फैक्चुअल करेंगे ओनली फैक्ट्स फैक्ट्स फैक्ट्स, तो दैट इज नॉट गोइंग टू वर्क. ठीक है, स्पेशली इन द केस ऑफ यूपीएससी एग्जामिनेशन, एंड दैट विल फर्दर इंक्रीज आवर बर्डन. ठीक है, वी थिंक दैट हमने तो केवल फैक्ट्स पढ़ना है, थोड़ा सा पढ़ना है, बट ये थोड़ा सा कभी भी थोड़ा सा नहीं होगा. ओके okay? वो इन नीड बढ़ती चली जाएगी. एवरी ईयर यू विल स्टार्ट कलेक्टिंग न्यू एंड न्यू फैक्ट्स, एडिंग न्यू एंड न्यू फैक्ट्स, एंड वो प्रॉब्लम आपके लिए बनी रहेगी. सो बेटर कि वी शुड व्हाट डू अ डिटेल डिस्कशन, प्लस वी शुड चूज द रेलेवेंट सोर्सेज विच आई हैव ऑलरेडी टेकन. ओके, कि कहाँ से किस बुक से कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, आई विल स्पेशली टेक केयर ऑफ दैट. ठीक है, क्योंकि मैं कोई हिस्टोरियन तो हूँ नहीं. ओके, सो वट एवर द चैप्टर्स दैट आर रेलिवेंट फ्रॉम डिफरेंट बुक्स, आई एम गोइंग टू ओके use all those relevant information in our classes. Okay, so this module is going to be one of your, you can say that, uh, strength in your prelims examination. जो weakness होती है वो weakness नहीं, ये ancient medieval culture, this will be your strength. You will be confident on this model. Okay, so we are going to enter that, but again, before starting the topic is what? Sources, okay, of historical information, or the sources which we use to reconstruct history. I've already discussed with you that when we talk about history, so this is a very simple definition of history, that history is the study of the past. ठीक है ना? History word, okay, has been derived from the word historia, and historia simply means what? Inquiry and investigation. Inquiry or investigation. This is the meaning of historia. It means history is scientific with this regard. ठीक है, हिस्ट्री में हम क्या करते हैं? इंक्वायरी करते हैं, इन्वेस्टिगेशन करते हैं. ठीक है, बट हाउ टू इंक्वायर, हाउ टू इन्वेस्टिगेट, दिस इज एन इंपॉर्टेंट थिंग. एंड वॉट एवर वी आर इन्वेस्टिगेटिंग, ओके, is it presenting before us the picture of a single, final and perfect history? इन्वेस्टिगेशन के बाद जो हिस्ट्री हमारे सामने है, can you say it that this history, whatever we are going to read, is single, फाइनल एंड परफेक्ट हिस्ट्री? क्या इसका हम क्लेम कर सकते हैं क्या? नो, वी कैन नॉट मेक दिस क्लेम दैट whatever we are going to learn is single, or your approach is the universal approach. ठीक है ना? Debate and disagreement are important part, okay, got it, in the growth of all forms of knowledge. So debate and disagreement is equally important in the history also. कि मैं कोई बात कहूंगा तो उससे आप क्या करोगे? Disagree करोगे. ठीक है, so debate and disagreement, like other forms of the knowledge, what we see that in history also debate and disagreements are very much important. When we give acceptance to the debate and disagreements, जब हम debate और disagreements को acceptance देते हैं,
तो इट इनरिचेस आवर नॉलेज, इससे हमारा नॉलेज क्या होता है, एनरिच होता है। ओके, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वी विल बी फैमिलियर विद द मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स। किसी भी नॉलेज को देखने के कई नजरिए होते हैं, और जब तक आप डिबेट और डिसएग्रीमेंट को अप्रूव नहीं करोगे, ठीक है, अगर कोई डिसएग्री होता है आपसे तो आप पत्थर लेके उसका सर फोड़ने दौड़ जाओगे, तो आप कभी भी मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स ऑफ नॉलेज से फैमिलियर नहीं हो पाओगे। ओके, सो व्हेन वी आर स्टडिंग आवर पास्ट, this kind of study, this kind of inquiry, this kind of investigation is very complex, बहुत complex है। Got it? And for this we need to accept this, that what we need is multiple perspectives, अलग अलग perspective से हिस्ट्री को समझने की जरूरत है। So we need to understand what, we need to understand multiple perspectives। जैनिज्म भी तो मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स की बात करता है, आई विल डिस्कस इट लेटर। अनेकांतवादिज्म एंड स्यादवादिज्म वो क्या है, मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स ही तो है, ठीक है ना। तो कंप्लीट और एग्जैक्ट पिक्चर हिस्ट्री की बहुत डिफिकल्ट होती है, बट स्टिल ओके वी आर गोइंग टू डू हिस्टोरिकल इंटरप्रिटेशंस। तो कैसे हम हिस्टोरिकल जो स्टडी ऑफ द पास्ट है, स्पेशली व्हेन वी इंटर इनटू द एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री। देखो, जैसे अगर आप मॉडर्न इंडिया की हिस्ट्री बोलोगे तो देयर आर रिटन अकाउंट्स, whatever the administrative steps that were taken by the colonial government, सारी चीजों को क्या किया उन्होंने, लिखा, डॉक्यूमेंटेड किया, ठीक है। तो ईच एंड एवरीथिंग इज डॉक्यूमेंटेड, सो योर टास्क बिकम्स इजियर। लेकिन जैसे जैसे हम और पास्ट की तरफ चले जाते हैं, लाइक मिडिवल इंडिया में चले जाओगे, फिर एंशिएंट इंडिया में चले जाओगे, प्री हिस्ट्री में चले जाओगे, तो डॉक्यूमेंटेशन, ओके, डॉक्यूमेंटेशन कब से होना शुरू हुआ, ये एक सबसे सोचने वाली बात है। फॉर एग्जाम्पल, देयर इज अ वेरी फेमस बुक written by Kallan. The name of that book is Raj Tarangidi. This fact is important for your films. You can write this. There is a very famous writer. The name of that writer is Kallan. Kallan. ठीक है। और ऐसे लेक्चर में जो भी फैक्ट्स और इंफॉर्मेशन आएंगे, इसको एक बॉक्स में कर लेना, राइट, मैक इट इन अ बॉक्स, तो वो आपके फिल्म्स के लिए इंपॉर्टेंट होगा। एंड कल्लन रोट अ बुक, द नेम ऑफ दैट बुक वाज राज तरंगिणी, ठीक है ना, राज तरंगिणी कल्लर ने लिखी, ठीक है। राज तरंगिणी, द लिटरल मीनिंग ऑफ राज तरंगिणी मीन्स रिवर ऑफ द किंग्स। राज तरंगिणी का जो मीनिंग है दैट इज व्हाट, रिवर ऑफ किंग्स, ठीक है। दिस इज व्हाट राज तरंगिणी। सो द वर्क ऑन दिस बुक started in 1148 and it was completed in 1150 AD, 1150 सॉरी 1148 AD में, ठीक है, इस बुक पे काम शुरू किया एंड फाइनली ही कंप्लीटेड इट इन 1150 AD। अब डू यू नीड टू रिमेंबर दिस ईयर, नहीं, बट यू मस्ट हैव अ सिंपल आइडिया कि इन विच सेंचुरी कल्लन रोट राज तरंगी। क्योंकि कई बार क्या होगा ना कि राइटर्स का नाम दे देंगे फिल्म्स में आपसे, फॉर एग्जाम्पल मान लो पायान वेन सांगित सिंह और उसमें एक दे दिया कल्लन, और कहा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मैनेज करो, तो कैसे मैनेज कर पाओगे, ठीक है। तो देर इज नो नीड टू रिमेंबर द एग्जैक्ट टाइम, बट स्टिल वी कैन हैव दिस आइडिया कि ये टाइम पीरियड क्या है, दिस इज व्हाट, ओके, 12th सेंचुरी एडी, है ना, 12th सेंचुरी एडी। और 12th सेंचुरी एडी, इट मींस 12th सेंचुरी एडी में कल्लन क्या लिख रहा है, राज तरंगिणी। एंड इन दिस बुक व्हाट ही हैज रिटन, ओके, राइट दिस, अकाउंट ऑफ द किंग्स ऑफ कश्मीर, ठीक है ना। In this book he has written what, the accounts of the kings of Kashmir, accounts of the kings of Kashmir, ठीक है, accounts of the kings of Kashmir, इसके बारे में लिखता है, got it, accounts of the kings of Kashmir, okay। बट वो कहाँ तक लिख पाएगा, जहाँ तक वो फेमिलियर होगा वहाँ तक लिख पाएगा, ठीक है ना। तो बहुत सारे किंग्स की वो डिटेल देता है, ठीक है। एंड दिस कल्लन इज डिस्क्राइब्ड एज द इंडियाज फर्स्ट हिस्टोरियन, यानी कि 12th सेंचुरी एडी की बात हम कर रहे हैं, और हम कल्लन को क्या कह रहे हैं, इंडियाज फर्स्ट हिस्टोरियन। मैंने कहा कि ये सारी चीजें डिबेट की है, इंडियाज फर्स्ट हिस्टोरियन, इंडियाज फर्स्ट हिस्टोरियन, ठीक है। कल्लन हैज बीन डिस्क्राइब्ड एज द इंडियाज फर्स्ट हिस्टोरियन, ठीक है, इंडियाज फर्स्ट हिस्टोरियन, गॉट इट। पोएट्री का वो यूज करता है, मेरी बात समझ गया ना। लेकिन कल्लन ने जो हिस्ट्री लिखी, वॉट एवर द हिस्ट्री ही हैज रिटन, can you compare it
ऑन द मॉडर्न पैरामीटर्स, अभी के पैरामीटर से कल्याण की हिस्ट्री को कंपेयर कर सकते हो आप? नहीं, ठीक है। तो पैरामीटर्स विल बी कंप्लीटली डिफरेंट, बट स्टिल सम पीपल कंसीडर दैट कल्याण इज एन इंपॉर्टेंट हिस्टोरियन। ऑप्शनल के बच्चे इस टॉपिक को डिटेल में पढ़ते हैं, ठीक है, कि कौन हिस्टोरियन था पहला, क्या डिबेट्स थे, बट हियर दिस बुक इज इंपॉर्टेंट। ये बात आप समझ गए ना? नाउ इन फिल्म्स इफ यू गेट दिस क्वेश्चन, कल्याण राज तरंगिणी कश्मीर का इतिहास, राइट, एंड दिस 12th सेंचुरी एडी, तो इतना आपको याद रहेगा। नाउ वी आर मूविंग एट, ओके। तो दिस इज व्हाट अ लिटरेरी सोर्स। कल्याण की राज तरंगिणी की बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? एक लिटरेरी सोर्स है। बट व्हेन वी क्लासिफाई द सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री, ठीक है, तो देखो क्लासिफाई जब हम करते हैं तो इसकी अलग अलग कैटेगरीज हैं। फॉर एग्जाम्पल वन क्लासिफिकेशन इज आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज, ठीक है, वन क्लासिफिकेशन इज आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज, ठीक है, टू रिकंस्ट्रक्ट हिस्टोरिकल डेवलपमेंट। द सेकेंड क्लासिफिकेशन हियर इज लिटरेरी सोर्सेज, लिटरेरी सोर्सेज। और लिटरेरी सोर्सेज में ही एक सब कैटेगरी हो जाएगी, वो क्या है? डिटेल्ड अकाउंट्स ऑफ द फॉरेन ट्रैवलर्स, ठीक है ना, कि फॉरेन ट्रैवलर्स ने भी इंडिया को जैसा देखा वैसा लिखा, उसके बेसिस पे भी हम अपने ओपिनियन को रिकंस्ट्रक्ट करते हैं। जैसे एग्जांपल बताया था मैंने एक क्लास में, ठीक है, अल्बेरूनी, कल की क्लास में बताया ना, सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स की बात करता है। तो ऐसी चीजें, ठीक है ना। तो देयर इज अ सब पार्ट इन द लिटरेरी सोर्सेज इटसेल्फ, एंड दैट इज कॉल्ड, रेड दिस, डिटेल्ड अकाउंट्स ऑफ फॉरेन ट्रैवलर्स। ये इसी का सब पार्ट है, डिटेल्ड अकाउंट्स ऑफ फॉरेन ट्रैवलर्स, ठीक है ना। तो दीज आर टू मेन स्ट्रीम्स थ्रू विच वी रिकंस्ट्रक्ट आवर हिस्ट्री। मेन स्ट्रीम की अगर हम बात करें तो पहला आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज एंड द सेकेंड इज लिटरेरी सोर्सेज, ये दो सबसे इंपॉर्टेंट है। बट लिटरेरी सोर्सेज के अलावा भी, ठीक है, डिटेल्ड अकाउंट ऑफ द फॉरेन ट्रैवलर्स, इसको भी हमें इन डिटेल देखने की जरूरत है। सो वी विल फर्स्ट स्टार्ट विद दीज आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज, यही से स्टार्ट करते हैं। प्री हिस्ट्री में बहुत सारी आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज के बारे में हम पढ़ेंगे, वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम दिस पार्ट। तो देखो, when we talk about archaeological sources, obviously we are talking about the material remains। हम किस चीज की बात कर रहे हैं? material remains की बात कर रहे हैं। और जो material remains हैं, ठीक है, study of human past में they play a very important role, ठीक है ना। it means that material remains and study of human past, okay, there is a good relation between these two, ठीक है। मटेरियल रिमेन्स को देखकर हम पास्ट की हिस्ट्री को क्या कर सकते हैं? इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। और पास्ट के मटेरियल रिमेन्स मिलेंगे कैसे? थ्रू आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशंस। बहुत सिंपल सी बात है कि मटेरियल रिमेन्स कैसे मिलेंगे? थ्रू आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशंस, ओके। सो दीज मटेरियल रिमेन्स वी कैन गेट थ्रू आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशंस। ये मटेरियल रिमेन्स हमें कैसे मिलेंगे? आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशंस। जैसे if we talk about some material remains, can we say that remains or vestiges of grand palaces and temples, ये भी मिल सकते हैं, ठीक है। टेम्पल्स के टूटे फूटे रिमेन्स मिल सकते हैं, ठीक है, या कंप्लीट टेम्पल मिल सकता है। पैलेसेस के रिमेन्स मिल सकते हैं, ठीक है, जैसे कुमरार पटना, मौर्यन पीरियड, वुडन पैलेस, ठीक है। तो ऐसी बात कही कई हिस्टोरियंस ने, ठीक है। इसके अलावा हमें क्या मिल सकता है? पॉटरी मिल सकता है, आइसोलेटेड बिट्स ऑफ पॉटरी मिल सकता है। दिस इज व्हाट अ काइंड ऑफ मटेरियल, ठीक है, मटेरियल रिमेन्स आर राइट दिस पॉटरी और आइसोलेटेड बिट्स ऑफ पॉटरी। कंप्लीट पॉटरी भी मिल सकता है एंड वी कैन गेट व्हाट? आइसोलेटेड बिट्स ऑफ पॉटरी, ठीक है। पॉटरी के छोटे छोटे टुकड़े भी मिल सकते हैं या फिर कंप्लीट पॉटरी भी मिल सकता है, ठीक है ना, कंप्लीट पॉटरी और आइसोलेटेड बिट्स ऑफ पॉटरी, ठीक है। स्ट्रक्चर्स जैसे मैंने बात करी, स्ट्रक्चर्स भी मिल सकते हैं, स्ट्रक्चर्स मिल सकते हैं, ठीक है। बिल्डिंग रिमेन्स मिल सकते हैं, ठीक है। वेस्टिजेस ऑफ पैलेसेस मिल सकते हैं, वेस्टिजेस ऑफ पैलेसेस मिल सकते हैं, टेम्पल्स मिल सकता है या फिर रिमेन्स ऑफ टेम्पल्स मिल सकता है। दीज आर स्ट्रक्चर्स। और इंडस वैली सिविलाइजेशन में हमें पूरा का पूरा क्या मिल गया है? शहर ही मिल गया है आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन से। द इंटायर सिटी हैज बीन डिस्कवर्ड फ्रॉम द आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन। तो वो मटेरियल रिमेन्स ही तो है जिसके बेसिस पे हम इंडस वैली सिविलाइजेशन पीरियड का हिस्ट्री रिकंस्ट्रक्ट करते हैं। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन राइट दिस, द रिमेन्स ऑफ एन इंटायर सिटी, the remains of an entire civilization has been discovered from हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, आईवीसी साइट्स, ठीक है ना। तो ये क्या है? मटेरियल रिमेन्स, रिमेन्स ऑफ एन एंटायर सिटी हैज बीन डिस्कवर्ड फ्रॉम हड़प्पा, मोहनजोदड़ो एंड अदर आईवीसी साइट्स, ठीक है ना।
जैसे लोथल से भी देख के लगता है यार पूरा का पूरा शहरी बसा हुआ था। ओके, इसके बाद कैन वी गेट सम आर्टिफैक्ट्स आल्सो। हाँ, आर्टिफैक्ट्स क्या है, जैसे आर्टिफैक्ट्स, पॉटरी इज आल्सो काइंड ऑफ आर्टिफैक्ट्स। जैसे यू टेक सॉइल, ठीक है, और आपने सॉइल को क्या किया, एक शेप दे दिया, दैट इज व्हाट आर्टिफैक्ट। जैसे आपने क्या लिया, मेटल लिया, ठीक है, लाइक आयरन, आयरन का और क्या है, हेमेटाइट। सो बाय दिस और पहले तो आपने मेटलर्जिकल मेटलर्जी से क्या किया, उससे आयरन पाया, और फिर आयरन को क्या किया, मोल्ड कर दिया, सॉर्ड बनाया, या फिर एरोज बनाया, या फिर कोई कोई भी दूसरी चीज बनाई, तो दैट इज कॉल्ड मेटल आर्टिफैक्ट्स। उसको हम क्या कहते हैं, मेटल आर्टिफैक्ट्स। कॉपर आर्टिफैक्ट्स, यानी कि हमने क्या किया, कॉपर का ओर ले लिया, उससे कॉपर को एक्सट्रैक्ट किया, एंड देन उससे हमने कोई बर्तन बना दिया, ठीक है, कोई भी ऐसी चीज बना दी, तो दैट विल बी कॉल्ड कॉपर आर्टिफैक्ट्स, गोल्ड आर्टिफैक्ट्स। मेरी बात समझ गया ना, ठीक है, कि किसी रॉ मटेरियल को एक नया शेप दे देना, ठीक है, एक नए डिजाइन में डाल देना, एक नई चीज तैयार कर देना, दैट इज कॉल्ड आर्टिफैक्ट्स। तो इन एंशिएंट इंडिया यू विल यूज दिस वर्ड आर्टिफैक्ट, ठीक है ना, तो राइट दिस वर्ड आर्टिफैक्ट, कई बार आएगा ये आर्टिफैक्ट। आर्टिफैक्ट में क्या हो सकता है, क्या ये स्टोन आर्टिफैक्ट वर्ड यूज कर सकते हैं हम, स्टोन आर्टिफैक्ट। अभी देखो क्लास में थोड़ा सा, अभी बहुत सारी बेसिक चीजों को बताऊंगा, वर्ड्स बताऊंगा, मीनिंग्स बताऊंगा, तो ऐसा लगेगा कि अभी तो हमारा सिलेबस स्टार्ट ही नहीं हुआ, ऐसी फीलिंग आएगी आपको। बट दीज थिंग्स आर वेरी मच इंपॉर्टेंट। जैसे ही आप ये समझ जाओगे, एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री विल बिकम वेरी मच इजियर फॉर यू। जैसे आर्टिफैक्ट्स, यू आर यूजिंग दिस वर्ड, तो आर्टिफैक्ट्स, कैन वी से स्टोन आर्टिफैक्ट्स कह सकते हैं, यस, तो राइट दिस स्टोन आर्टिफैक्ट्स, ठीक है, स्टोन आर्टिफैक्ट्स। कैन वी से क्ले आर्टिफैक्ट्स, हाँ, क्ले आर्टिफैक्ट्स कह सकते हैं, ठीक है, मेटल आर्टिफैक्ट्स कह सकते हैं, वी कैन से मेटल आर्टिफैक्ट्स, वी कैन यूज दिस वर्ड। कॉपर आर्टिफैक्ट्स वर्ड यूज कर सकते हो, आयरन आर्टिफैक्ट्स यूज वर्ड यूज कर सकते हो, यू कैन यूज ऑल दीज वर्ड्स, कॉपर आर्टिफैक्ट्स, मेटल आर्टिफैक्ट्स, आयरन आर्टिफैक्ट्स, ठीक है ना। ओके, सो वी कैन यूज अ लॉट ऑफ वर्ड्स हियर लाइक दिस, ठीक है। इसके बाद क्या बोन्स हेल्पफुल हो सकता है, क्योंकि बोन टूल्स भी तो मिले हैं ना, ठीक है, सो दी थ्रू दीज बोन टूल्स आल्सो वी कैन रिकंस्ट्रक्ट द हिस्ट्री ऑफ दिस पीरियड। तो हाँ, बोन्स भी हम यूज कर सकते हैं मटेरियल रिमेन्स के रूप में। अच्छा, हिस्ट्री में हम ये भी पढ़ते हैं कि वीट का रिमेन मिला, बार्ले, हिस्टोरियंस ने डिस्कवर किया ना कि भाई इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग कौन सा फूड क्रॉप्स यूज करते थे, ठीक है, कॉटन यूज करते थे कि नहीं, वीट, बार्ले, राइस, तो कैसे, इट मीन सीड्स और रिमेन्स ऑफ फूड ग्रेन्स, इसकी भी स्टडी होती है, दैट विल आल्सो कम इन द कैटेगरी ऑफ द मटेरियल रिमेन्स। तो राइट दिस सीड्स, सीड्स आ जाएगा, सीड्स ऑफ फूड ग्रेन्स और रिमेन्स ऑफ फूड ग्रेन्स, ओके, दैट इज आल्सो कंसीडर्ड टू बी अ पार्ट ऑफ मटेरियल रिमेन्स, ठीक है। कॉइन्स विल कम इन दिस कैटेगरी और नॉट, कॉइन्स आएगा कि नहीं, यस, ठीक है ना, कॉइन्स विल आल्सो कम इन द कैटेगरी ऑफ मटेरियल रिमेन्स, कॉइन्स भी आ जाएगा। कैन वी से स्कल्पचर्स भी आ सकता है इसमें, मटेरियल रिमेन्स में, यस, स्कल्पचर्स भी आ सकता है, ठीक है, एक्सकैवेशन से हमें स्कल्पचर्स भी मिल सकते हैं, ओके, दैट इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट। इंस्क्रिप्शंस भी मिल सकते हैं हमें, वी कैन ऑल्सो गेट इंस्क्रिप्शंस, इंस्क्रिप्शंस के बारे में आई विल डिस्कस इन डिटेल हियर। इंस्क्रिप्शंस भी मिल सकता है, समथिंग दैट हैज बीन इंस्क्राइब्ड ऑन अ सरफेस इज कॉल्ड इंस्क्रिप्शन, द सिंपल मीनिंग, इंस्क्रिप्शंस भी मिल सकता है। बट इंस्क्रिप्शंस के दो मीनिंग हो सकते हैं, पहला, यू कैन गेट इंस्क्रिप्शंस फ्रॉम द आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशंस, ठीक है, किसी पत्थर पे कुछ लिखा हुआ है और आपने मतलब एक्सकवेशन से उसको निकाला, तो दैट विल बी आर्कियोलॉजिकल, ओके, एविडेंस, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस हो गया। बट उस पर जो कुछ भी लिखा हुआ है, वॉट एवर हैज बिन रिटन ऑन दैट, ओके, सरफेस, अगर आपने उसको पढ़ लिया, इफ यू आर एबल टू रीड दैट वॉट एवर हैज बिन रिटन ऑन दैट, जो स्क्रिप्ट वगैरह उसको अगर आपने डिसिफर कर लिया, तो साथ ही साथ वो लिटरेरी एविडेंस भी हो जाएगा। मेरी बात समझ गया ना। तो whenever we talk about inscriptions, तो inscriptions of the purposes of both, ठीक है, लिटरेरी भी होगा और आर्कियोलॉजिकल भी होगा। तो बताओ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या हो जा रहा है इसमें, इंस्क्रिप्शन हो जा रहा है, ओके। तो एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री को जब हम रिकंस्ट्रक्ट करते हैं, तो when we talk about the material remains, these are some of the examples of the material remains through which we can stone tools and implements, bone tools and implements, ठीक है, stone tools and implements तो इसमें आएगा ही आएगा। जैसे प्री हिस्ट्री में stone tools and implements, I have told you that प्री हिस्ट्री जो है that is from 5 lakh to, okay, जो हमने 4000 BC तक का जो टाइम पीरियड वो किया था, तो वो प्री हिस्ट्री में क्या है, प्राइमरीली
द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस आर व्हाट? स्टोन टूल्स एंड इम्प्लीमेंट्स। तो पूरे के पूरे फेज को हमने क्या कह दिया, ठीक है, कि ये पूरा का पूरा फेज क्या है, ठीक है, ये है स्टोन एज। तो नाम हमने दे दिया आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस के बेसिस पे। बट अगर हम थोड़ा सा और इस कैटेगरी को अब थोड़ा सा ऑर्गेनाइज करें, जैसे आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस, लेट्स ऑर्गेनाइज इट इन अ बेटर वे, ठीक है। आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस में मेजर कैटेगरीज कौन कौन सी होंगी, व्हाट विल बी द मेजर कैटेगरीज हियर? तो मटेरियल ऑब्जेक्ट्स, मटेरियल ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, ठीक है, दैट वी हैव गॉट फ्रॉम आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशंस। तो एक तो ये मेजर कैटेगरी हो गई, ठीक है, मटेरियल ऑब्जेक्ट्स that we have got from archaeological excavations. This will be one major category, ठीक है। In the same way, inscriptions, inscriptions will be the second most important thing. Inscriptions के साथ साथ we will also read about epigraphy, क्या होता है, I will discuss with you in detail inscriptions, epigraphy, ठीक है। अच्छा बताओ, coins, coins, study of coins is known as numismatics, ठीक है। तो numismatics is the third important source, numismatics is the third important source। और इसके बाद आर्किटेक्चरल रिमेन्स, रिमेन्स ऑफ द बिल्डिंग स्ट्रक्चर्स, जो बताया मैंने, जैसे आईवीसी पूरा का पूरा शहर का जो रिमेन मिला है, ठीक है, या किसी पैलेस का रिमेन मिला है, तो दिस इज व्हाट द फोर्थ कैटेगरी इज व्हाट, आर्किटेक्चरल रिमेन्स। फोर्थ कैटेगरी में वी कैन कीप हियर आर्किटेक्चरल रिमेन्स, जैसे स्तूपास और ये सारी चीजें, पिलर्स हो गया, ठीक है। तो दिस ऑल विल डिस्कस। तो these are the four categories. अब why these categories are important? Okay, I will first tell you some questions. तो क्वेश्चन पता होगा तो फिर हम इस टॉपिक को ज्यादा इंटरेस्ट के साथ समझेंगे। जैसे राइट अ क्वेश्चन, क्वेश्चन इज ओके, जैसे एक क्वेश्चन तो कल मैंने बताया था ना, ज्योग्राफिकल फैक्टर्स और डेवलपमेंट ऑफ हिस्ट्री। जैसे 2023 एग्जैक्टली द क्वेश्चन वाज एक्सप्लेन द रोल ऑफ ज्योग्राफिकल फैक्टर्स टुवर्ड्स द डेवलपमेंट ऑफ एंशिएंट इंडिया। तो कल की क्लास में तो इसे हमने किया था। नाउ राइट सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, question number 2, question number 1 here from this topic will be right, okay, assess the importance of the accounts of, assess the importance of, assess the importance of the accounts of, assess the importance of the accounts of Chinese and Arab travelers in the reconstruction of history of India. Accounts of Chinese and Arab travelers, Chinese and Arab travelers in the reconstruction of history of India, reconstruction of history of India to 2018। अब आप ये समझो कि ये क्वेश्चन को लिया कहाँ से गया है, मेन चैप्टर क्या है, यही तो है, सोर्सेज ऑफ इंडियन हिस्ट्री। और ये इसका मेन टॉपिक क्या हो गया, जो लिटरेरी, लिटरेरी सोर्सेज है। लिटरेरी सोर्सेज में मैंने क्या बताया था, वन सब पार्ट इज व्हाट, अकाउंट ऑफ फॉरेन ट्रैवलर्स। तो इसमें क्वेश्चन सीधा सीधा आ गया चाइनीज एंड अरब ट्रैवलर्स। तो ऑब्वियसली दिस टॉपिक वी आर गोइंग टू डिस्कस इन आवर क्लासेस, इसको करेंगे। नाउ राइट क्वेश्चन नंबर 2, ये भी यूपीएससी ने पूछा 2018। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, राइट दिस, हाउ डू यू जस्टिफाई द व्यू दैट द लेवल ऑफ एक्सीलेंस, हाउ डू यू जस्टिफाई, हाउ डू यू justify the view that the level of excellence, how do you justify the view, आप इस व्यू को कैसे जस्टिफाई करेंगे, that the level of excellence of Gupta numismatic art is, of Gupta numismatic art, Gupta numismatic art, it's talking about coins, समझ में आ गया ना, is not at all noticeable in later times, is not at all, is not at all noticeable in later times, is not at all noticeable in later times, ठीक है ना, is not, not at all noticeable in the later times। ध्यान से समझना, when UPSC ask a question they ask an entire theme। आज जो सबसे बड़ा चैलेंज है ना वो यही है, जब आप इंटायर थीम को समझोगे you can write answer of any question, words may differ। जैसे if you look at this question, obviously it's talking about the Gupta coins, numismatics की बात कर रहा है। अच्छा, इस क्वेश्चन में इसने क्या किया,
पूरे पहले के डेवलपमेंट को कनेक्ट कर दिया, और फिर आपसे ये भी एक्सपेक्ट कर रहा है कि आपको बाद के डेवलपमेंट की थोड़ी बहुत जानकारी है कि नहीं. इट मीन्स इफ यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक, द डेवलपमेंट ऑफ कॉइनेज सिस्टम इन एंशिएंट इंडिया, तो आप इसका आंसर बेहतर लिख सकते हैं. क्योंकि ये क्या क्वेश्चन क्या कह रहा है कि गुप्ता पीरियड में जो कॉइन्स हैं, ठीक है, इनकी एक्सीलेंस, ठीक है, गुप्ता पीरियड में देखो, how do you justify the view that the level of excellence of Gupta numismatic art is not at all noticeable in the later times? इसका मतलब जो कॉइन्स का एक्सीलेंस है वो गुप्ता पीरियड तक तो है, यानी गुप्ता पीरियड तक आते आते एक्सीलेंट कॉइन्स बनने लगे हैं, बट इसके बाद वो एक्सीलेंस नहीं देखा गया. तो अब बताओ इस क्वेश्चन में यू नीड अ होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग और नॉट, कि गुप्ता पीरियड तक आते आते एक्सीलेंट कॉइन्स बनने लगे, यानी कि कॉइन्स की शुरुआत हुई कहां से, महाजनपदा एरा से, पंच मार्क कॉइन से वो डेवलपमेंट शुरू होता है. ठीक है, फिर मौर्यन पीरियड में किस तरह का डेवलपमेंट है, लेटर मौर्यन पीरियड में किस तरह डेवलपमेंट है, और गुप्ता पीरियड के फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ में क्या डिफरेंसेस हैं. दिस ऑल यू नीड टू अंडरस्टैंड. गॉट इट? कि फर्स्ट हाफ में एक्सलेंट कॉइन्स है, सेकंड हाफ में कॉइन्स में गोल्ड कंटेंट में डिक्लाइन है. तो व्हाट कुड बी द पॉसिबल रीजन. और इतना कुछ जानने के बाद व्हेन यू विल राइट कंक्लूजन, ठीक है, तो कंक्लूजन में आप थोड़ा सा रेफरेंस दोगे दिल्ली सल्तनत पीरियड में कॉइन्स का डेवलपमेंट एंशिएंट इंडिया से, ठीक है, वो और एक्सेलेंट होता है या डिक्लाइन होता है. दिस विल राइट इन योर कंक्लूजन पार्ट. सो दिस क्वेश्चन रिक्वायर्स द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द होल थीम. ठीक है, प्लस अगर आपने ये डिबेट पहले से समझ रखा है कि कॉइन्स हिस्ट्री को जानने में कैसे हेल्पफुल होते हैं, प्लस अपने डेवलपमेंट ऑफ कॉइनेज सिस्टम वाले टॉपिक को ठीक से समझा है, सो दिस क्वेश्चन विल नॉट बी एट ऑल डिफिकल्ट फॉर यू. ठीक है, बट इफ यू विल रश टुवर्ड्स रेडीमेड आंसर्स दैट आर फ्लोटेड इन द मार्केट, ठीक है, कि नए नए कंटेंट्स आ रहे हैं, सब एक ही होता है, द ओरिजिन ऑफ ऑल द कंटेंट्स इज द सेम, ठीक है, प्रेजेंटेशन थोड़ा अलग हो जाता है कुछ ऐसे, तो फिर दैट विल नॉट मेक यू एक्सीलेंट इन योर थॉट्स एंड आइडियाज. अब इससे हमने एक बात समझी कि विच चैप्टर दे आर चूजिंग फर्स्ट चैप्टर सोर्सेज फॉर द एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री. तो इस पे हम ज्यादा टाइम देंगे. इसी तरह से द नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट दिस नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से इसी चैप्टर से अगला क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन 3. राइट, क्वेश्चन 3 इज द रॉक कट आर्किटेक्चर रिप्रेजेंट्स, ये 2017 का क्वेश्चन था, 2017. द नेक्स्ट इज राइट, द रॉक कट आर्किटेक्चर, the rock cut architecture represents one of the most important sources of knowledge. The rock cut architecture represents one of the most important sources of knowledge of early Indian art and history. One of the most important sources of knowledge of early Indian art and history. Early Indian art and history. Discuss. 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 Question 2020. सेम चैप्टर, चैप्टर एक ही है. इसमें क्या पूछ रहा है कि रॉक कट आर्किटेक्चर, ठीक है ना, किस तरह से इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ नॉलेज है जो हमारी हिस्ट्री का जो नॉलेज है इसको रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए. मेरी बात समझ गया ना. सो रॉक कट आर्किटेक्चर क्या है बताओ. मटेरियल रिमेन्स, बिल्डिंग ऑब्जेक्ट्स, आर्किटेक्चरल रिमेन्स, यही तो है, ठीक है ना. तो फ्रॉम द सेम टॉपिक व्हाट वी सी दैट 3 डिफरेंट क्वेश्चंस, ये पिछले मतलब मैंने कुछ एक क्वेश्चंस बताए. अच्छा बताओ, अगर कॉइन्स पे क्वेश्चन आ सकता है तो इज इट अ प्रोबेबिलिटी दैट इंस्क्रिप्शंस पे भी आ सकता है. इज इट अ प्रोबेबिलिटी इफ फ्रॉम दिस चैप्टर the question has been asked on the coins numismatic art, so there is a greater probability that there are chances that UPSC may ask question on what, inscriptions. एक और चीज नोटिस करो, प्रीलिम्स के क्वेश्चन को देखो, you will get questions on inscriptions, you will get questions on coins, you will get questions on sculpture, you will get questions on the temple architecture, you will get questions from the literary sources. ठीक है, लिटरेरी सोर्सेज से भी तो क्वेश्चन आता है कि एंशिएंट इंडिया की बुक्स का नाम, राइटर्स का नाम, किस पीरियड में कौन बुद्धिस्ट मॉन्क था. तो आप समझ पा रहे हो कि इस चैप्टर का रिलेटिव इंपॉर्टेंस कितना आपके एग्जाम के लिए. बट इस चैप्टर के साथ एक प्रॉब्लम क्या है कि पहले तो एक जनरल अंडरस्टैंडिंग हम डेवलप करेंगे, and when we'll enter into the topic, gradually when we'll move forward, okay, your knowledge will get updated in each and every chapter. हर चैप्टर में आपका नॉलेज क्या होगा,
और ज्यादा इनहेंस होगा। तो उसके लिए हमें शुरुआत कहीं से तो करनी पड़ेगी। ओके, सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम हियर। ओके, सो आई होप यू हैव गॉट सम आइडियाज। ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। किसी भी एक पार्ट को जो लेके चलते हैं, जैसे देखो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में लेट्स डिस्कस सम मीनिंग। फॉर एग्जांपल हम इंस्क्रिप्शंस को ही ले लेते हैं, एपिग्राफी को ले लेते हैं और इंस्क्रिप्शंस को ले लेते हैं। पहले इसको पढ़ते हैं, बिकॉज क्वेश्चन पॉइंट से आए हुए हैं, तो देयर इज अ ग्रेटर प्रोबेबिलिटी वी कैन गेट क्वेश्चंस फ्रॉम द इंस्क्रिप्शंस एंड एपिग्राफी। तो सबसे पहले लिखो एपिग्राफी। वन क्वेश्चन तो यही हो सकता है कि व्हाट इज एपिग्राफी। एक प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन की तो यही है कि व्हाट इज एपिग्राफी। एपिग्राफी क्या है? सो राइट दिस, स्टडी एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ ancient inscriptions. Study and interpretation of ancient inscriptions. Study and interpretation of ancient inscriptions. और ये जो ancient inscriptions हैं, इनको हम क्या कहते हैं? They are also called epigraphs. इसे हम epigraphs भी कहते हैं. Study and interpretation of ancient, okay, inscriptions. Ancient inscriptions are also called epigraphs. और epigraphs को हम और क्या कह सकते हैं? We can also call them piece of writing. Right? They are also called piece of writing. Epigraphs को हम क्या कह सकते हैं? That is also called piece of writing. Inscriptions और epigraphs may also be called piece of writing. ठीक है ना? अब बताओ ancient time में पेपर था क्या लिखने के लिए? नहीं. So how you are going to write? That is most important point. कि कैसे लिखोगे? Piece of writing. How will you write? What will be the surface where you will write? So there are two probabilities. You can write either on hard material. Hard material is durable material, or soft material. तो hard material और soft material क्या पेपर तो नहीं है? ठीक है, तो देखो generally when we talk about epigraphy, so here the study of, okay, a written material, whatever has been written scripts, the study of written scripts that is recorded on hard and durable material. ये बात आ जाती है, ठीक है, कि epigraphy में हम ancient piece of writing को study करते हैं, and whatever is written that is written on hard and durable material. यानी कि यहाँ पे क्या आ गया, कहाँ लिखा हुआ है? hard and durable material. hard and durable material, ठीक है ना? hard और ड्यूरेबल मटेरियल पे लिखा हुआ है, ठीक है ना? क्या हो सकता है ये हार्ड और ड्यूरेबल मटेरियल? सबसे पहला हार्ड और ड्यूरेबल मटेरियल जो आपको इजीली अवेलेबल है वो क्या है? स्टोन. गॉट इट? सो इन दैट केस दैट विल बी कॉल्ड स्टोन इंस्क्रिप्शंस. अगर वो हार्ड एंड ड्यूरेबल मटेरियल स्टोन है तो दैट विल बी कॉल्ड व्हाट? स्टोन इंस्क्रिप्शन. ठीक है, अच्छा बताओ, व्हेन द पीपल विल बी, जब मेटल कल्चर आएगा और लोगों को कॉपर की जानकारी होगी, तो क्या लोग कॉपर प्लेट्स पे भी लिख सकते हैं? इज इट अ पॉसिबिलिटी? वो भी हार्ड एंड ड्यूरेबल मटेरियल, तो दैट विल बी कॉल्ड व्हाट? कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन. ठीक है, कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन. मेटल प्लेट इंस्क्रिप्शन भी कह सकते हो. ठीक है, कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन कह सकते हो. तो मेटल प्लेट इंस्क्रिप्शन, कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन, कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन, मेटल प्लेट इंस्क्रिप्शन, कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन, कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन. इज इट क्लियर? ये तो जनरल अंडरस्टैंडिंग है कि ये हार्ड मटेरियल है. नाउ व्हेन द पीपल विल राइट ऑन सॉफ्ट मटेरियल, तो सॉफ्ट मटेरियल क्या हो सकता है? व्हाट कुड बी दैट सॉफ्ट मटेरियल जिस पे वो लिख सकते हैं? ठीक है, तो आपकी एनसीईआरटी क्लास 6 में भी ये डिटेल दिया हुआ है, तो सबसे पहले तो मैं वो आपको बता दूं. राइट, सॉफ्ट मटेरियल. ठीक है, जैसे क्लास 6 की एनसीईआरटी में दिया हुआ है, राइट, दिस सॉफ्ट मटेरियल क्या था? ओके, द बार्क ऑफ द बर्च ट्री. ठीक है, द बार्क ऑफ द बर्च ट्री मे बी दैट सॉफ्ट मटेरियल. ठीक है ना, बार्क ऑफ द बर्च ट्री. ठीक है, वो क्या है? वो ऐसा मटेरियल है, बार्क ऑफ द बर्च ट्री. ठीक है ना, उस पे लिखते थे बार्क पे. पाम लीव्स, यू कैन ऑल्सो राइट पाम लीव्स, पाम लीव्स पे लिख सकते हो. ठीक है, बार्क ऑफ द बर्च ट्री, एंड यू कैन ऑल्सो यूज पाम लीव्स एज द मटेरियल. आप पाम लीव्स पे लिख सकते हो. ठीक है, आप उसको क्या कर सकते हो? प्रोटेक्ट कर सकते हो, प्रिजर्व कर सकते हो. बट इस बात के चांसेस हैं कि नहीं कि उनकी ड्यूरेबिलिटी क्या है? कम है इन कंपैरिजन टू द स्टोन सरफेसेस. तो यू कैन राइट हियर दैट द द चैलेंजेस क्या है इनके, है ना? तो खराब होने के इनके चैलेंजेस है, दे आर नॉट ड्यूरेबल.
पाम लीव्स पे जो कुछ भी लिखा जा रहा है दैट दे आर नॉट ड्यूरेबल, ठीक है ना। पेपर वॉज इन्वेंटेड वेयर, पेपर वॉज इन्वेंटेड इन चाइना। धीरे धीरे वुड ब्लॉक प्रिंटिंग और ये सारी चीजें चाइना में है। तो लीव्स वेयर यूज्ड, पाम लीव्स वेयर यूज्ड, ठीक है ना। पल्माइरा लीव्स वेयर यूज्ड, तालीपॉट लीव्स वेयर यूज्ड। कुछ और चीजें अगर आप ऐड करना चाहो तो लिख सकते हो। पल्माइरा लीव्स वेयर यूज्ड फॉर दिस पर्पस, Palmyra leaves were used for this purpose. Okay. Talipot leaves were used for this purpose. Talipot leaves were used for this purpose. Bark of birch tree were used for the purpose. ठीक है। पाम लीव्स को हम क्या कहेंगे? अच्छा देखो, ये जो कुछ भी लिखा जा रहा है, ओके, कैसे लिखा जा रहा है? ऑब्वियसली दे आर कॉल्ड मैन्युस्क्रिप्ट्स। इसी को हम क्या कहते हैं? मैन्युस्क्रिप्ट्स। जैसे इफ इट इज रिटन ऑन पाम लीव्स सो इट विल बी कॉल्ड palm leaves manuscripts, ठीक है ना। तो menu means by hand, menu simply means what? By hand, and script means anything that has been written, जिसको लिखा गया है by hand, that is called manuscripts, ठीक है ना। जिसको हमने हाथ से लिखा, anything that has been written by hand, that is called manuscripts, ठीक है। तो palm leaves manuscript, ये सब क्या है? सॉफ्ट मटेरियल, गॉट इट। अच्छा, जब लोगों ने पाम लीव्स पे लिखा तो उनको पता होगा कि भाई इसमें प्रॉब्लम आ सकती है। प्रॉब्लम क्या आ सकती है? ठीक है, जैसे फंगस लग सकता है उस पर, वो डिकम्पोज हो सकता है, ठीक है, या फिर चूहे खा सकते हैं उसको, इस तरह की तमाम तरह की चीज़ें आ सकती हैं। तो उन्होंने कुछ उपाय भी सोचे, और उपाय क्या थे कि हाउ टू ट्रीट एंड प्रिजर्व दीज पाम लीव्स manuscripts. The people were also having this knowledge that how to how to treat and preserve, how to treat and preserve these palm leaves manuscripts. How to treat and preserve these palm leaves manuscripts, ठीक है। कैसे प्रिजर्व किया जा सकता है? राइट, पॉइंट वन, ठीक है। ट्रीटेड विथ इंसेक्टिसाइड्स लाइक फॉर्मेल्डिहाइड, फॉस्फीन गैस, ठीक है। ट्रीटेड विथ इंसेक्टिसाइड्स लाइक फॉर्मेल्डिहाइड, फॉस्फीन गैस, ethylene oxide, ethylene oxide, ethylene oxide, chloramate solutions, etc. Chloramate solutions, etc. ठीक है, chloramate solutions, etc. Right, next point. It was also cleaned using solvents like, it was also cleaned using solvents like water, detergents, or ethyl alcohol. It was also cleaned using solvents like water, detergents, and ethyl alcohol. एथाइल अल्कोहल, ठीक है। इसके बाद और क्या करते थे कि मान लो कहीं कोई टुकड़ा कट फट गया, ठीक है, तो उसको रिपेयर भी वो करते थे। राइट, नेक्स्ट पॉइंट, दैट द स्प्लिट्स डैमेज्ड पार्ट्स वेर रिपेयर्ड आल्सो। स्प्लिट्स और डैमेज्ड पार्ट्स वेर रिपेयर्ड आल्सो। स्प्लिट्स और डैमेज्ड पार्ट्स वेर रिपेयर्ड आल्सो। नाउ टेल मी, these are called what? Ancient manuscripts. इसी को हम क्या कहते हैं? एंसियंट मैन्युस्क्रिप्ट्स। अब आपको अंतर समझ में आया, डिफरेंस समझ में आया? इंस्क्रिप्शंस और एंसियंट मैन्युस्क्रिप्ट्स में अंतर है। दीज आर कॉल्ड एंसियंट मैन्युस्क्रिप्ट्स, दोनों को मिलाना नहीं है, ठीक है ना। एंसियंट मैन्युस्क्रिप्ट्स, so do you think that these ancient manuscripts are important, okay, for the knowledge of history, to reconstruct history? Yes, they are important. So write this, these ancient manuscripts are important source of information for history, okay. These ancient manuscripts are important source of history, important source of history. अब देखो, मान लो कि आपको किसी जमाने का एंशिएंट मैन्युस्क्रिप्ट मिल गया, ठीक है, और आप उसके बेसिस पे हिस्ट्री लिखना चाहते हो, तो सबसे पहली प्रॉब्लम क्या आएगी, चैलेंज क्या आएगी कि उस टाइम के स्क्रिप्ट को पढ़ लो। जैसे मान लो कि ऋग्वेदा के टाइम में, जैसे वैदिक पीरियड में जो संस्कृत था, दैट संस्कृत वाज डिफरेंट फ्रॉम द संस्कृत दैट वाज स्पोकन ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड। मेरी बात समझ गया ना, कि उसमें भी डिफरेंस था, ठीक है। गुप्ता पीरियड में क्या है? क्लासिकल फॉर्म ऑफ संस्कृत, ठीक है, क्लासिकल फॉर्म ऑफ संस्कृत। पाणिनि अष्टाध्यायी में जो लिखते हैं दैट इज द क्लासिकल फॉर्म ऑफ संस्कृत।
The Sanskrit that was spoken or written during the Vedic period is different from the Sanskrit that was spoken or written during the Gupta period. तो पहली तो चीज ये है कि आप उस स्क्रिप्ट को पढ़ पाओ. दूसरी चीज, इफ यू गॉट सम एंशिएंट मैन्युस्क्रिप्ट, द सेकंड टारगेट इज, ठीक है, किसके लिए लिखा गया है ये आप जान पाओ. मेरी बात समझ गया ना? टू whom it has been written, why it has been written, what was the purpose of writing these ancient manuscripts, ये सब पता लगाना होता है. और इसके साथ साथ उस एज की जो ब्रॉडर टेंडेंसीज हैं इसकी भी आपको समझ होनी चाहिए. ठीक है, कि उसके एज को डिफाइन करो. एज को डिफाइन करने के भी बहुत सारे साइंटिफिक मेथड्स हैं, और उस एज में क्या इंपॉर्टेंट सोशियो पॉलिटिकल इकोनॉमिक एंड कल्चरल डेवलपमेंट्स हैं. इफ यू नो ऑल दिस, देन यू विल बी एबल टू डिसीफर what has been written on those ancient manuscripts. उसके बाद आप डिसीफर कर पाओगे कि क्या उस पे लिखा हुआ है. ठीक है ना? अब हम आते हैं इंस्क्रिप्शंस पे. तो इंस्क्रिप्शंस की बात हमने करी तो क्या जोड़ दिया इसके साथ? देखो, सॉफ्ट मटेरियल की बात हमने करी तो एंशिएंट मैन्युस्क्रिप्ट्स हो गया. क्लियर हो रहा है? एंशिएंट मैन्युस्क्रिप्ट्स, मैंने कहा समथिंग दैट हैज बीन रिटन. तो एंशिएंट मैन्युस्क्रिप्ट्स इज व्हाट? सॉफ्ट मटेरियल, जो मैंने अभी आपको बताया. और हार्ड एंड ड्यूरेबल मटेरियल पे अगर लिखा गया है, हार्ड एंड ड्यूरेबल मटेरियल पे, तो दैट इज व्हाट? इंस्क्रिप्शंस. इसको हम क्या कहेंगे? इंस्क्रिप्शन. कभी आपने ये वर्ड नहीं सुना होगा कि पाम लीव्स इंस्क्रिप्शन, गलत हो जाएगा. ठीक है, पाम लीव्स इंस्क्रिप्शन नहीं होता है. तो हार्ड मटेरियल पे, ड्यूरेबल मटेरियल पे इफ समथिंग हैज बीन रिटन, दैट इज कॉल्ड इंस्क्रिप्शन. उसे ही हम क्या कहते हैं? इंस्क्रिप्शन. अच्छा, इंस्क्रिप्शन में क्या लिखा गया है? एनीथिंग दैट हैज बीन रिटन, रिटन और इंस्क्राइब्ड, रिटन और इंस्क्राइब्ड, इसी को हम क्या कहते हैं? इंस्क्रिप्शन. तो जो कुछ भी लिखा गया है, whatever has been written, first you will have to discover two things. What is the two thing? First is the content of the writing. उसमें लिखा क्या गया है. ठीक है, सी साइट का आपका नोट्स है कि हिस्ट्री का नोट्स है, पहले तो ये पहचानोगे. ठीक है, एंड द पर्पस, क्यों लिखा गया है, पर्पस ऑफ राइटिंग. ठीक है, आपका नोट्स दिखेगा तो समझ में आ जाएगा एग्जाम देने के लिए लिखा गया. मेरा नोट्स देख लोगे तो समझ में आ जाएगा पढ़ाने के लिए लिखा गया, क्योंकि मैं नोट्स में जगह जगह मेंशन करता हूँ ये भी समझाना है, ये भी समझाना है, ये भी समझाना है. मेरी बात समझ गया ना? ओके, डिस्कस दिस, रिलेट दिस थीम, रिलेट दिस थीम. ओके, तो वो देख के समझ में आ जाएगा. तो कंटेंट एंड पर्पस, दीज टू थिंग्स दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड. ठीक है ना? तो ये जो इंस्क्रिप्शंस भी हैं, दीज इंस्क्रिप्शंस आर आल्सो क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ दीज टू थिंग्स. इन इंस्क्रिप्शंस का भी क्या है? क्लासिफिकेशन. इन क्लास वी विल रीड अ लॉट ऑफ इंस्क्रिप्शंस, बहुत सारे इंस्क्रिप्शंस हम पढ़ेंगे, बट फर्स्ट वी मस्ट हैव एन आइडिया, अ ब्रॉडर आइडिया, that these inscriptions are also classified on the basis of its content, on the basis of the purpose. For example, one is donative inscriptions. एक inscription को हम क्या कहेंगे? One inscription will be called donative inscriptions. One inscription will be called donative inscription. Right? Second inscription is called dedicative inscription. Dedicative inscription. Dedicative inscription. Dedicative inscriptions. The third inscription you can write Royal Land Grants inscription. Royal Land Grants inscription. Royal Land Grant inscriptions. Royal Land Grant inscription. ठीक है, हालांकि ये इसी का पार्ट है, बट थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है. Then the next will be commemorative inscriptions. Commemorative inscriptions. Commemorative inscriptions. So on the basis of the content and the purpose, we have divided inscriptions into various categories. ठीक है ना? Various categories. Okay? जैसे example, example of this commemorative inscription. ये प्रीलिम्स का फैक्ट भी है, हाईलाइट कर लेना. जहां पे बताऊं प्रीलिम्स का फैक्ट है, ऑलरेडी पीवाईक्यू. कॉमेमोरेटिव इंस्क्रिप्शन का एग्जांपल क्या है? राइट दिस लुम्बिनी पिलर इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोका. Lumbini pillar inscription of Ashoka. Lumbini pillar inscription of Ashoka. ये कमेमोरेटिव इंस्क्रिप्शन है. ठीक है ना? कमेमोरेटिव इंस्क्रिप्शन है. कमेमोरेटिव क्यों है लुम्बिनी पिलर इंस्क्रिप्शन? ठीक है,
क्योंकि ये इंस्क्रिप्शन एक स्पेशल पर्पज से लिखा गया, एक इवेंट को कमेमोरेट करने के लिए लिखा गया। और वो इवेंट क्या था? दैट अशोका's विजिट, ओके, टू द बुद्ध बर्थ प्लेस, ठीक है ना। तो इस इवेंट को कमेमोरेट करने के लिए जो इंस्क्रिप्शन लिखा गया, दैट इज कॉल्ड कॉमेमोरेटिव inscription. Got it? So you can write here Lumbini pillar inscription, right? It was written to commemorate the visit of Ashoka. It was written to commemorate the visit of Ashoka to the birthplace of Buddha. So that is called commemorative inscription. Ashoka to the birthplace of, okay, Buddha. तो ये क्या हो गया? Commemorative inscription. In the same way, एक कैटेगरी यहाँ पे क्या है देखो, डोनेटिव इंस्क्रिप्शन की। जैसे व्हेन आई विल डिस्कस विथ यू मौर्यन पीरियड, तो उसमें मैं आपको केव्स के बारे में बताऊंगा, ठीक है ना। दो चीजें हैं, एक है नेचुरल केव्स दैट वर डोनेटेड टू द बुद्धिस्ट मॉन्क्स, उसके बाद एक है रॉक कट केव आर्किटेक्चर, ठीक है ना। तो रॉक कट केव आर्किटेक्चर मौर्यन पीरियड में पढ़ेंगे। जैसे आपने सुना होगा कि आजीविकास को केव्स डोनेट किए गए, ठीक है। तो जब केव्स डोनेट किए गए, जैसे देखो कोई मिनिस्टर है, उद्घाटन करने जाता है, कोई पुल उल बनाता है, तो अपना नाम लिखवा के आता है ना कि इनके कर कमलों द्वारा ये कार्य संपादित हुआ, ऐसा वो लिखवाते हैं ना कि दिस वर्क हैज बीन कंप्लीटेड, ठीक है, बाय द कैबिनेट मिनिस्टर हेमंत कुमार। वो अपना नाम लिखवा के आते हैं कि माहौल बना रहे। गॉट इट? सो दैट इज कॉल्ड, यहाँ पे क्या हो जाएगा? डोनेटिव। कि इफ आई एम द रूलर एंड आई हैव डोनेटेड केव्स टू द आजीविका मॉन्क्स, तो कहीं दीवार पे लिखवा दूंगा ऑन द केव वॉल्स, कहीं ना कहीं तो लिखवाऊंगा ना, नहीं तो क्रेडिट कोई और ले जाएगा, ठीक है। मेरी बात समझ गया ना? ठीक है। जैसे लोग पढ़ाते हैं तो उसके नीचे मतलब वीडियोस के पास वो लगा देते हैं, क्या कहते हैं, वाटर मार्क, कि हमारी वीडियो कहीं लीक ना हो जाए। मैं तो लीक ही कर रहा हूँ, ठीक है, ठीक है। तो वाटर मार्क वाला ही कहानी है यहाँ पे भी। राइट दिस डोनेटिव। डोनेटिव क्या है? डोनेटिव, डोनेटिव में राइट, फॉर एग्जांपल राइट दिस रिटन ऑन द केव वॉल्स। इंस्क्रिप्शंस मींस एनीथिंग दैट हैज बीन रिटन, तो केव वॉल्स पर लिख दिया तो वो भी क्या हो गया? इंस्क्रिप्शन ही तो हो गया ना। क्या विपिन? केव वॉल्स इंस्क्रिप्शंस, वॉल पे लिख दिया आपने, तो रिटन ऑन द केव वॉल्स, ओके। रीजन? डोनेटेड टू मॉन्क्स लाइक बुद्धिस्ट आजीवकास, तो दैट विल बी कॉल्ड डोनेटिव इंस्क्रिप्शन, उसको कहा जाएगा डोनेटिव इंस्क्रिप्शन, ठीक है ना, डोनेटिव इंस्क्रिप्शन। इसी तरह से रॉयल लैंड ग्रांट्स, इट मींस इफ द किंग इज गिविंग लैंड ग्रांट्स, ठीक है, टू ब्राह्मण्स या टू बुद्धिस्ट मॉन्क्स, अगर किंग लैंड ग्रांट दे रहा है, लैंड ग्रांट का मतलब क्या होगा? दैट वहां से टैक्स नहीं वसूला जाएगा, वो आपको राजा ने दे दिया तो दे दिया, दैट इज कॉल्ड रॉयल लैंड ग्रांट, ठीक है। तो वो बात इंस्क्राइब होगी ना कहीं लिखा जाएगा ना, तो दैट इज कॉल्ड रॉयल लैंड ग्रांट इंस्क्रिप्शंस, ठीक है ना। जनरली इट वाज गिवन टू द ब्राह्मण्स, ओके, एंड द अदर, जैसे रूलर के ओरिएंटेशन पे डिपेंड करता है, ठीक है, कि सो दैट द, जैसे आपको मैंने एनसीईआरटी में आगे बताऊंगा कि किस तरह से ब्राह्मण्स को लैंड ग्रांट्स दिए गए और वहां से, है ना, मतलब एक एग्रीकल्चरल सेटलमेंट्स नए डेवलप हुए साउथ इंडिया में, ठीक है, तो इस पे भी हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे क्या है? लैंड ग्रांट्स में अब आप समझ गया ना कि लैंड ग्रांट्स दैट वाज गिवन बाय द रूलर टू द religious groups, particularly Brahmins, for the development of their religious establishments, ठीक है ना। जैसे एग्जांपल है यहाँ, राइट दिस, ओके, इसमें नासिक इंस्क्रिप्शंस, ये क्या है? रॉयल लैंड ग्रांट इंस्क्रिप्शंस है। क्लास में इसको हम डिस्कस करेंगे आगे। नासिक इंस्क्रिप्शन, दिस इज अ काइंड ऑफ रॉयल लैंड ग्रांट इंस्क्रिप्शन, ठीक है, नासिक इंस्क्रिप्शन, ठीक है। ये है सातवाहना एंड सातवाहना रूलर्स का है नासिक लैंड ग्रांट इंस्क्रिप्शंस, जिसमें रूलर ने लैंड ग्रांट दे दिया और वहां से वो टैक्स नहीं कलेक्ट करेगा, इस बात को लिखा जाएगा उस पर, ठीक है। अच्छा, कुछ इंस्क्रिप्शंस ऐसे भी हैं, देयर आर आल्सो सम इंस्क्रिप्शंस जिसको हम रॉयल इंस्क्रिप्शंस कहेंगे। अगेन एक कैटेगरी ऐसी भी है रॉयल इंस्क्रिप्शंस की, वेयर you will get details of the public works done during the period of different rulers। कुछ इंस्क्रिप्शन से जो पब्लिक डेवलपमेंट वर्क्स हो रहे हैं उसकी भी जानकारी आपको मिलेगी, ठीक है ना। जैसे मान लो सुदर्शन लेक, ठीक है, इसके बारे में मैं आगे बताऊंगा, क्लास में डिटेल में बताऊंगा। तो सुदर्शन लेक इज एन आर्टिफिशियल वाटर रिजर्वर,
वाटर रिजर्वायर किस काम में आ सकता है, आप समझ पा रहे हैं, ठीक है ना। तो वो वाटर रिजर्वायर किस रूलर के टाइम में बना, फिर किस रूलर के टाइम में रिपेयर हुआ, ठीक है। तो ये क्या हो गया, डिटेल्स ऑफ द पब्लिक वर्क्स डन, ठीक है ना। सो दीज काइंड ऑफ इंस्क्रिप्शंस हैव आल्सो बीन फाउंड। फॉर एग्जांपल जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन, ठीक है, गिरनार जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन से हमें क्या मिलता है, डिटेल्स ऑफ द पब्लिक वर्क्स डन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ डिफरेंट रूलर्स। यू कैन राइट दिस दैट गिरनार जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन, गिरनार जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन, जूनागढ़ inscription, details of the public works done during the time of different rulers, ठीक है, during the time of different rulers। एग्जाम्पल लिख सकते हो सुदर्शन लेक, डिटेल्स अबाउट सुदर्शन लेक, इसके बारे में बहुत डिटेल में मैं बताऊंगा बट क्लास में बताऊंगा, ठीक है ना, कि सुदर्शन लेक किसने शुरू किया बनवाना, क्या क्या इसमें डेवलपमेंट हुए, ठीक है। रुद्र दामन का है वो जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन, ठीक है ना, गॉट इट। तो ये सारी चीजें क्लास में आएंगी, अभी तो फिलहाल एक आपको एक आइडिया मिल पा रहा है। इसके बाद देयर इज अनदर कैटेगरी ऑफ रॉयल इंस्क्रिप्शंस दैट इज कॉल्ड प्रशस्तीज, पेनिगायरिक, ठीक है, प्रशस्तीज, ठीक है, प्रशस्तीज, प्रशस्तीज, ओके, दिस वर्ड इज मोर पॉपुलर, ये उतना मिलता नहीं है वर्ड, ठीक है, तो बेटर प्रशस्तीज ही याद करो, ठीक है। प्रशस्तीज मीन्स क्या है, जो लिखा तो गया है, इंस्क्रिप्शन है समथिंग दैट हैज बीन रिटन बट इन द प्रेज ऑफ अ रूलर, दैट इज कॉल्ड प्रशस्ति, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल प्रशस्ति, जैसे समुद्रगुप्त प्रयाग प्रशस्ति इंस्क्रिप्शन, ठीक है, उसमें समुद्रगुप्त की मिलिट्री अचीवमेंट्स को क्या किया गया है, ग्लोरीफाई किया गया। समुद्रगुप्त अपना शाहरुख खान की तरह गिटार लेके गिटार बजाता है, ये भी बताया गया, ठीक है। तो समुद्रगुप्त की पर्सनालिटी के बारे में, समुद्रगुप्त की मिलिट्री विक्ट्रीज, अचीवमेंट्स, इन सब को ग्लोरीफाई किया गया है। और अगर समुद्रगुप्त का वो प्रयाग प्रशस्ति इंस्क्रिप्शन नहीं होता तो क्या हम समुद्रगुप्त के बारे में ठीक से जान रहे होते, अभी नहीं जान रहे होते, ठीक है ना। या अशोकास के टाइम में जो एडिक्ट्स और इंस्क्रिप्शंस थे, जैसे इन इंडिया द सिस्टम ऑफ अर्लीस्ट इंस्क्रिप्शंस वर सीन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ अशोका, सबसे पहले कहाँ दिखता है, अशोका के टाइम में। तो अगर वो इंस्क्रिप्शंस नहीं होते तो क्या अशोका के बारे में हम उतना जान पाते क्या जितना आज जान पा रहे हैं, नहीं। समुद्रगुप्त प्रयाग प्रशस्ति इंस्क्रिप्शन नहीं होता तो क्या हम समुद्रगुप्त के बारे में उतना जान पाते जितना आज जान पा रहे हैं, नहीं, ठीक है ना। सो दैट इज वाई दीज इंस्क्रिप्शंस आर वेरी मच इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो अब लिख लिया ना आपने, प्रशस्ति में समुद्रगुप्त प्रयाग प्रशस्ति इंस्क्रिप्शन, अगेन दिस विल बी डिस्कस्ड इन डिटेल विथ यू इन द टॉपिक गुप्ता पीरियड, गुप्ता पीरियड में डिटेल में बताऊंगा कि क्या क्या है, ठीक है ना। और भी बहुत सारी चीजें हैं। एक बात हमेशा याद रखना है कि अशोकाज इंस्क्रिप्शंस, राइट दिस, अशोकाज इंस्क्रिप्शंस are considered to be earliest in India. Ashoka's inscriptions are considered to be earliest in India. ठीक है, Ashoka's inscriptions are considered to be the earliest in India. ठीक है, और अशोकास की इंस्क्रिप्शन को जब लोग स्टडी करने गए तो जनरली दे फाउंड 4 स्क्रिप्ट्स। वहां पे कितने अशोका के इंस्क्रिप्शंस में कितने स्क्रिप्ट यूज हुए हैं, 4 स्क्रिप्ट्स वर यूज। कौन कौन से स्क्रिप्ट हैं, सो राइट दिस, ओके, ब्राह्मी, खरोष्ठी, आरामाइक एंड ग्रीक, ठीक है ना, ब्राह्मी, खरोष्ठी, आरामाइक एंड ग्रीक, ब्राह्मी, खरोष्ठी, आरामाइक एंड ग्रीक, गॉट इट, ब्राह्मी, खरोष्ठी, आरामाइक एंड ग्रीक, ओके। अब जब अशोका के इंस्क्रिप्शन पढ़ेंगे तो विल डिस्कस इन डिटेल, ठीक है, कि कौन सा इंस्क्रिप्शन सबसे ज्यादा कहाँ से मिला है, कौन सा लैंग्वेज यूज हुआ है, ठीक है, और इन सब के मतलब क्या होते हैं, वी विल डिस्कस इन डिटेल इन द अशोकास चैप्टर, ठीक है ना। तो ये बात आपको समझ में आई। चलिए इसके बाद देखो लैंग्वेजेस, ठीक है, इंस्क्रिप्शंस। नाउ you can write this point also, write this, inscriptions of Indo-Greek shakas, inscriptions of Indo-Greeks shakas, okay, Kushans were also found. Inscriptions of Indo-Greek rulers, Shaka's rulers, Kushans were also found.
ठीक है, राइट, नेक्स्ट पॉइंट, द लैंग्वेज संस्कृत ऑल्सो केम टू बी यूज्ड इन इंस्क्रिप्शंस। ठीक है, लैंग्वेज संस्कृत ऑल्सो केम टू बी यूज्ड इन इंस्क्रिप्शंस। लैंग्वेज संस्कृत ऑल्सो केम टू बी यूज्ड इन इंस्क्रिप्शंस। ठीक है ना, इंस्क्रिप्शंस में कौन सा लैंग्वेज यूज हुआ? द लैंग्वेज संस्कृत ऑल्सो केम टू बी यूज्ड इन इंस्क्रिप्शंस। ठीक है, एग्जाम्पल लिख लो, जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन, रुद्र दामन्स जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन, रुद्र दामन्स जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन, रुद्र दामन्स जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन, रुद्र दामन जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन। ठीक है, रुद्र दामन वॉज अ शका रूलर एंड शकाज वेर इन्वेडर्स ग्रुप। इंडो ग्रीक शका पहलवास एंड कुषाण, तो शकाज क्या थे? इन्वेडर्स ग्रुप। और रुद्र दामन का ये जो इंस्क्रिप्शन है, जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन, राइट दिस संस्कृत इंस्क्रिप्शन। ठीक है, रिटन इन चेस्ट संस्कृत, शुद्ध संस्कृत में लिखा हुआ है। ठीक है, रुद्र दामन जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन रिटन इन चेस्ट संस्कृत, फर्स्ट इंस्क्रिप्शन रिटन इन चेस्ट संस्कृत। तो बताओ कि एक फॉरेनर ग्रुप जो है शकाज, उनका एक जो रूलर है रुद्र दामन, वो किस लैंग्वेज में लिखी गई स्क्रिप्ट को प्रमोट कर रहा है? संस्कृत। और उसमें भी क्या है? फर्स्ट चेस्ट संस्कृत इंस्क्रिप्शन। What does it mean? Is it the example of cultural interaction? क्या ये cultural interaction का example है? Yes, this is a significant example of cultural interaction also. So write this, example of cultural interaction. This is a significant example of cultural interaction also. ये cultural interaction का भी एक significant example है, ठीक है? Is a significant example of cultural interaction also. ठीक है? Significant example of cultural interaction also. ठीक है, इसके बाद गुप्ता पीरियड में, राइट, इंस्क्रिप्शंस आर इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर द गुप्ता पीरियड आल्सो। इंस्क्रिप्शंस आर इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर द गुप्ता पीरियड आल्सो। ठीक है, रूलर्स की जेनोलॉजी के बारे में पता चलती है हमें, जनरेशंस ऑफ रूलर्स। ठीक है, कि इसके बाद कौन, किसके बाद कौन, ये सारा पता चलता है। जेनोलॉजी ऑफ द रूलर्स, जेनोलॉजी ऑफ द रूलर्स वी गेट, ये पता चल जाता है। कई बार हमें कुछ रूलर्स के इंडिविजुअल पर्सनालिटी ट्रेट्स के बारे में भी पता चलता है, उसके शौक के बारे में भी पता चलता है, जैसे समुद्रगुप्त शाहरुख खान की तरह गिटार बजा रहा है। ठीक है, ये पता चलता है। सो दैट्स व्हाई इंस्क्रिप्शंस आर आल्सो इंपॉर्टेंट। तो ये रूलर्स के, ठीक है, रूलर के पर्टिकुलर हैबिट्स, हॉबीज को भी बताते हैं, रूलर की ब्रेवरी को भी बताते हैं, रूलर के मिलिट्री अचीवमेंट्स को भी बताते हैं। ठीक है, अच्छा बताओ, क्या इन इंस्क्रिप्शंस के हेल्प से हिस्ट्री के डेट्स को रिकंस्ट्रक्ट करने में हेल्प मिल सकती है? यस और नो? यस। अच्छा, इंस्क्रिप्शंस में कभी कभी एक्सेगरेशन भी होगा, चीजों को बढ़ा चढ़ा के भी बताया जाएगा, जैसे प्रशस्ति में। ठीक है, तो इस चीज को लिमिटेशंस हम मान सकते हैं। ठीक है, पुराना जमाना है, राजा का टाइम है, राजा के बारे में कुछ भी इधर उधर लिख दिए, क्रिटिकल कमेंट कर दिए तो गला कट जाएगा। ठीक है, क्रिटिकल कमेंट नहीं करना है। ठीक है, आपको केवल मेरिट्स बतानी है, ठीक है, डिमेरिट्स नहीं बतानी है। गॉट इट? तो प्रशस्ति से, प्रशस्ति क्या है? वो पार्ट है जिसमें केवल और केवल क्या बताया गया? मेरिट बताया गया, और वो भी बढ़ा चढ़ा के बताया गया। ठीक है ना? तो inscriptions gives us an idea about what? Okay, genealogy, about the dates in history. ठीक है, अच्छा, inscriptions में कई बार कुछ मिथ वाले एलिमेंट्स भी आएंगे, बट दैट इज ऑल्सो इट्स लिमिटेशन पार्ट। ठीक है ना? जैसे एक और फेमस इंस्क्रिप्शन है, दैट इज एहोल इंस्क्रिप्शन ऑफ चालुक्य रूलर पुलकेशिन टू, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, यू कैन राइट हियर एहोल इंस्क्रिप्शन। एक और एग्जाम्पल हो गया, दैट इज एहोल इंस्क्रिप्शन ऑफ चालुक्य रूलर पुलकेशिन टू, a whole inscription of Chalukya ruler Pulkesin II. ठीक है, right? This inscription gives a dynastic genealogy. This inscription gives a dynastic genealogy and achievements of the military achievements of the ruler. Military achievements of the ruler. तो a whole inscription भी हमारे सामने एक example है. In the same way, there is another inscription, that is Gwalior inscription of King Bhoj. Write this. Gwalior inscription of King Bhoj. ग्वालियर इंस्क्रिप्शन ऑफ किंग भोज। ठीक है, राइट, दिस इंस्क्रिप्शन गिव्स फुल अकाउंट ऑफ द प्रेडिसेसर्स ऑफ दिस रूलर एंड देयर अचीवमेंट्स। मतलब इस रूलर के पहले कौन से रूलर रूल कर रहे थे
और उनकी मिलिट्री अचीवमेंट्स क्या थी, दिस ऑल इंफॉर्मेशन विल गेट फ्रॉम this Gwalior inscription of King Bhoj, right? This inscription gives us the full details of the predecessors of King Bhoj and the military achievements of these rulers ठीक है, military achievements of these rulers, ठीक है. Now have you some idea about the inscription? इंस्क्रिप्शन की स्टडी को क्या कहते हैं, एपिग्राफी. ये बात आपने समझ में, स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शंस. अब आप ये बताओ चैलेंजेस और लिमिटेशंस क्या है इंस्क्रिप्शंस के. व्हाट आर द चैलेंजेस और लिमिटेशंस. चैलेंजेस और लिमिटेशंस क्या है, ठीक है. पहला क्या है, चैलेंज क्या है, पर्पस. राइट, राइट दिस, डिसिफरिंग द कंटेंट एंड द पर्पस. ये पहला चैलेंज है, deciphering the content and the purpose. This is the first challenge related to the inscriptions, deciphering the content and the purpose. Got it? Deciphering the content and the purpose. This is the first challenge. और क्या challenge हो सकता है? What can be the other challenges? बताओ, ठीक है. हाँ, read this. Okay, deciphering the content and the purpose. Okay, read this. Some elements of exaggeration also, especially in प्रशस्तिस, कुछ exaggeration भी है. Some elements of exaggeration also, especially in प्रशस्तिस. ये भी एक चैलेंज है. थर्ड चैलेंज क्या हो सकता है, जैसे देखो इंस्क्रिप्शन, जैसे मान लो कि इंस्क्रिप्शन अगर केव वॉल्स पे है तो उसको तो आप मूव नहीं करोगे ना एक जगह से दूसरे जगह. बट मान लो इफ दिस इज अ पीस ऑफ स्टोन और इस पे मैंने कुछ लिखा है, ठीक है, ये इन सीटू भी हो सकता है एक्स सीटू भी हो सकता है. इन सीटू मीन्स जैसे मान लो आई एम लिविंग हियर इन नोएडा, तो इंस्क्रिप्शन मैंने नोएडा में लिखा और नोएडा से ही एक्सकवेशन हुआ. दिस माइट बी पॉसिबल, ठीक है, कि इसको हेमंत बैंगलोर लेके चले गए, ठीक है. अब ये इन सीटू नहीं रहा, ये क्या हो गया, एक्स सीटू हो गया. अब बैंगलोर से मिला और मैं क्या कर रहा हूँ, इस इंस्क्रिप्शन को पढ़ के और देख रहा हूँ कि यार बैंगलोर की हिस्ट्री के बारे में कैसे जानकारी दे रहे हो, आधा तो दिमाग इसी में लग जाएगा, ठीक है ना. तो इंस्क्रिप्शन इन सीटू भी हो सकता है, एक्स सीटू भी हो सकता है. अगर वो इन सीटू है तो हमें ज्यादा एक्यूरेट इंफॉर्मेशन मिलेगा और ज्यादा आसानी से मिलेगा. बट अगर वो x2 है सो इट बिकम्स मोर चैलेंजिंग टू रीड दैट पार्ट, ठीक है ना. तो ये भी है, रेड दिस इन सीटू एंड x2 इन सीटू एंड x2. नाउ स्टडी ऑफ विच वन इज मोर चैलेंजिंग, स्टडी और कोरिलेट करना किसका ज्यादा चैलेंजिंग है, x2 का ज्यादा चैलेंजिंग है. रेड दिस, स्टडी एंड कोरिलेशन ऑफ x2 inscriptions are more challenging. Study and correlation of x2 informations are more challenging, ठीक है. अच्छा देखो, कई बार क्या होता है इसमें, जेनोलॉजीज भी होती हैं, जेनोलॉजीज ऑफ द रूलर्स, वंशावलियां होती हैं, ठीक है, जेनोलॉजीज ऑफ द रूलर्स. बट उनके साथ भी एक प्रॉब्लम है. प्रॉब्लम क्या है, जैसे मान लो शका इन्वेडर हो आप, ठीक है, आप बाहर से आए, ठीक है, अपने आप को इंडियन रूलर के रूप में एस्टैब्लिश कर लिया. जैसे फिल्मों में देखोगे, कभी कभी फिल्म का हीरो दूसरों को बेवकूफ बनाने के लिए बाजार से पेंटिंग खरीद लाता है और हीरोइन को प्रभावित करता है, नायिका को प्रभावित करता है, कहता है देखो ये मेरे पिताजी हैं, ये मेरे दादाजी, ये मेरे परदादा, ठीक है, ऐसा होता है ना. तो कहानी तो यहाँ भी ऐसी हो सकती है. इफ यू आर अ फॉरेन इन्वेडर, आप इंडिया में आए, आपने खुद को इंडियनाइज बनाया, बट विच क्लास वाज द रूलिंग क्लास, क्षत्रियास वर द रूलिंग क्लास. मेरी बात समझते. तो नाउ आपको फोर वर्णा सिस्टम विच वाज द पिलर ऑफ सोशल स्ट्रक्चर इन इंडिया, इफ यू आर गिवन ऑप्शन टू चूज वन वर्णा, विच वर्णा यू विल चूज. आप बाहर से आए, इन्वेडर हो, यहाँ पे आके रूलर बन गए, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, चारों में से कौन सा ऑप्शन वो चूज करेगा. नेचुरल एंड ऑब्वियस चॉइस विल बी द क्लास ऑफ क्षत्रिय, क्योंकि क्षत्रिय क्या थे, रूलर्स थे ना, और उनको क्षत्रिय बना कौन सकता है, ये पावर किसके पास है, ब्राह्मण्स के पास है, ठीक है. तो ब्राह्मण्स ने उनको क्या किया, एक नई कैटेगरी बनाई उनकी, व्रात्य क्षत्रिय, दैट इज सेकेंडरी क्षत्रिय, बट दे वर प्लेस्ड इन द क्षत्रियास. कई बार ऐसा भी हुआ है कि जो जेनोलॉजीज तैयार करी गई, वंशावलियां तैयार करी गई, उसमें भी एक्सेगरेशन है. मेरी बात समझ गया ना. कुछ तक तो ठीक है, लेकिन उसके पीछे वाली कहानी क्या है, इमेजिनेटिव भी है.
तो वो एक अलग चैलेंज क्रिएट कर देती है कि जेनोलॉजीज में अगर एग्जीग्रेशन हो जाए तो दैट विल क्रिएट एडिशनल चैलेंजेस फॉर द हिस्टोरियंस एंड दिस माइट बी अ पॉसिबिलिटी, ये हो सकता है, ठीक है ना। तो जेनोलॉजीज में आप लिख सकते हो, है ना, कि टू अ लार्ज, राइट दिस, टू सम एक्सटेंट, टू अ लार्ज एक्सटेंट they are accurate, but there are some limitations also that they are exaggerated, कुछ limitations भी हैं ये exaggerated है, ठीक है। बट ओवरऑल आप ये बताओ, ओवरऑल ठीक है, मेरिट क्या है, व्हाट इज द मेरिट, दीज आर द चैलेंजेस। मेरिट क्या है कि अगर हम आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस में सबसे इंपॉर्टेंट और ऑथेंटिक सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन की बात करें तो वो कौन सा है, इंस्क्रिप्शन। In archaeological evidences, if you count the most important and authentic source of historical information, that is inscription. सबसे important तो यही हो गया ना, so you can write this, that among these archaeological evidences, the most important and authentic source of historical information is inscription. The most important and authentic source of historical information is inscription, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट और ऑथेंटिक सोर्स ऑफ हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन है, राइट। सेकेंड पॉइंट, ओके, इट प्रोवाइड्स डेटेबल इंफॉर्मेशन, डेटेबल इंफॉर्मेशन, डेटेबल इंफॉर्मेशन मिलता है, राइट। नेक्स्ट पॉइंट, डोनेटिव रिकॉर्ड्स और डोनेटिव इंस्क्रिप्शंस help us in identifying those rulers who patronized a particular religious groups. Donative inscriptions helps us in identifying, okay, those rulers who पैटर्नाइज द पर्टिकुलर रिलीजियस ग्रुप। आगे एंशिएंट में आप पढ़ोगे कि सुलर ने बुद्धिस्ट ग्रुप को पैटर्नाइज किया, इसने जैन्स को, इसने आजीविकास को, तो डोनेटिव इंस्क्रिप्शन से ही हमें पता चलता है, गॉट इट। डोनेटिव इंस्क्रिप्शंस हेल्प्स अस इस इन आइडेंटिफाइंग that which rulers patronize which particular religious group, okay, right। Next point, okay, the details of the transactions like land grants are found, the details of transactions like land grants are found, ठीक है ना। तो अग्रहार विलेज, ठीक है, अग्रहार विलेज में विलेज एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम कैसा था, ये सब की जानकारी हमें, विलेजेस एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम की भी जानकारी कैसे मिल सकती है, इंस्क्रिप्शन से मिल सकती है, यू कैन राइट दिस, ओके। Village administrative system and practices, details of the public works done during the time of different rulers, details of the public works done during the time of different rulers, we also get these details from the, okay, inscriptions। ये details भी हमें कहाँ से मिल सकते हैं, इंस्क्रिप्शन से मिल सकते हैं, गॉट इट, ओके। नाउ राइट अ क्वेश्चन, क्वेश्चन इज, ओके, अब देखो जो चाइनीज एंड अरब ट्रेवलर्स वाला क्वेश्चन है, वहां पे हमने क्या करना है, चाइनीज और अरब ट्रेवलर्स के वर्ड्स की जगह इंस्क्रिप्शन वर्ड लिख देना, और वो नया क्वेश्चन हो गया, गॉट इट, राइट अ क्वेश्चन। क्वेश्चन इज, assess the importance of the, assess the importance of the inscriptions, assess the importance of the inscriptions in the reconstruction of history of India, assess the importance of the inscriptions in the reconstruction of history of India, assess the importance of the inscriptions in the reconstruction of the history of India। Have you got some idea मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा गया है, you cannot expect कि exactly वही क्वेश्चन रिपीट हो जाए, but on that model, from that main frame of the chapter, they can ask another question for the next time। तो तैयारी करने की स्ट्रेटजी क्या है कि क्वेश्चन देखना और नए अनएक्सप्लोर्ड एरियाज को तैयार कर लेना, मेरी बात समझ गया ना। तो विद मिनिमम एफर्ट्स वी विल बी कंफर्टेबल, और आपको पता है कि अगर पढ़ा हुआ टॉपिक एग्जाम में आता है तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल ज्यादा अच्छा रहता है, गॉट इट। तो इंस्क्रिप्शन पे तो लिख लोगे ना, और वैसे भी देखो, अच्छा इंस्क्रिप्शन में एक और वर्ड आता है, कॉइन इंस्क्रिप्शंस, बिकॉज कॉइन्स पे भी कुछ लिखा हुआ मिलता है, तो दैट विल बिकम व्हाट, कॉइन इंस्क्रिप्शंस। तो अभी तो कॉइन हम अलग से पढ़ने जा ही रहे हैं, वी आर गोइंग टू डिस्कस द coins, so this is a greater probability that you can get question from this topic, inscription। now you can write 150 words easily, I think 150 वर्ड तो लिख सकते हो। और जब हम क्लास में पढ़ेंगे इंटायर एंशिएंट हिस्ट्री जीएस, अभी तो पूरा बाकी है,
तो वहाँ पे कहीं सुदर्शन लेक आएगा, कहीं प्रयाग प्रशस्ति आएगा, अशोकाज एडिक्ट्स एंड इंस्क्रिप्शंस आएंगे, ठीक है। तो यू विल गेट अ लॉट ऑफ एडिशनल इंफॉर्मेशन आल्सो। बट अभी क्या हो गया, आपके दिमाग में एक फॉर्मेट बन गया, ओके, एंड ऑन बेसिस ऑफ दैट फॉर्मेट यू कैन इजीली राइट द आंसर। गॉट इट? अच्छा, अब आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस में सेकंड इंपॉर्टेंट एरिया लेट्स एक्सप्लोर, दैट इज क्वाइंस। न्यूमिस्मेटिक्स पे आते हैं, सो राइट दिस second important area, that is coins. Numismatics. Numismatics, what is numismatics? So the study of coins is known as numismatics. Read this, study of coins is known as numismatics. Study of coins, okay, is known as numismatics. और inscriptions के बाद this is the second important source for the reconstruction of history of India. अगर हम रैंकिंग दे तो एक नंबर पे किसका आएगा, राइट, inscriptions का, and this is the second important source. So write this, okay, coins are the second important source for the reconstruction of history of India. Coins are the second important source for the reconstruction of history of India. Coins second important source है। तो अब आपको ये नंबरिंग याद रखनी है। फर्स्ट इंपॉर्टेंट सोर्स इज व्हाट, इंस्क्रिप्शंस, एंड सेकंड इंपॉर्टेंट सोर्स इज व्हाट, क्वाइंस। ठीक है, पहला इंपॉर्टेंट सोर्स इंस्क्रिप्शन और दूसरा इंपॉर्टेंट सोर्स क्या क्या हो गया, क्वाइंस हो गया। ठीक है ना, क्लास बोरिंग तो नहीं है ना? देखो क्या होता है, पॉपुलर और रेलेवेंट दोनों एक दूसरे के कॉन्ट्राडिक्टरी है। ठीक है, अगर मैं ऐसी क्लास पढ़ाने लगूंगा जिसमें आपको मजा आ जाए, आप तालियां पीटने लगो, तो वो एग्जामिनेशन हॉल में जाके चेंज हो जाएगा माहौल, वहां कुछ नहीं कर पाओगे। ठीक है, सो इन ऑर्डर टू मेक इट मोर रेलेवेंट वी विल हैव टू इंटर इनटू डिटेल्स। क्वेश्चन आपके सामने है, व्हाट यूपीएससी इज आस्किंग। ठीक है, तो क्लास को तो हम थोड़ा सीरियस तो रखना पड़ेगा ना, लेवल ऑफ द क्वेश्चन आप देख लो। ठीक है, हल्की फुल्की स्टडी से काम नहीं चलेगा, जो आमतौर पे होता है। ठीक है, मैं भी नहीं पढ़ा पाता हूँ कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में तो ठीक से, बिकॉज आई डोंट गेट सफिशिएंट टाइम। मुझे पता है कि टाइम लगता है। ठीक है, चमत्कार जैसी कोई चीज नहीं होती, देयर इज नथिंग लाइक चमत्कार, इट्स ऑल अबाउट द नंबर ऑफ क्लासेस। ओके, नाउ अब देखो कॉइन्स के बारे में अब देखते हैं। सबसे पहले अब जो हिस्टोरिकल डेवलपमेंट मैंने आपको बताया, हिस्ट्री एंशिएंट इंडिया में पता है आपको, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट स्टोन एज, स्टोन एज के बाद क्या है, कैलकोलिथिक पीरियड, देन उसी में आ गया इंडस वैली सिविलाइजेशन, देन वैदिक कल्चर, महाजनपद एरा, मोहनियन पीरियड, लेटर मॉडर्न पीरियड, गुप्ता पीरियड। तो विल ट्रेस आउट द डेवलपमेंट लाइक दिस ना, ऐसे ही ट्रेस आउट करेंगे। तो इन दिस क्लास आई विल गिव यू अ ब्रीफ आउटलाइन। कॉइन्स के बारे में हम महाजनपदा में डिटेल से पढ़ेंगे, मौर्यन में भी डिटेल से पढ़ेंगे, बट एक ब्रीफ आउटलाइन ऑफ स्ट्रक्चर आपको दूंगा, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट यू कैन राइट 150 वर्ड्स आंसर आल्सो। इसके बेसिस में आंसर भी लिख सकते हो, ऐसा नहीं, ठीक है ना, बट ये और डिटेल में क्लास में हम पढ़ेंगे। तो देखो, जैसे अगर हम डेवलपमेंट्स की बात करें तो सबसे पहला डेवलपमेंट क्या है, स्टोन एज। ड्रॉ दिस स्ट्रक्चर इन योर नोट्स, स्टोन एज। ठीक है, कैलकोलिथिक पीरियड, कैलकोलिथिक पीरियड, कैलकोलिथिक पीरियड में ही आ गया इंडस वैली सिविलाइजेशन। यू ऑल नो व्हाई आई एम राइटिंग दिस फॉर्मेट, एंड देन कम्स वैदिक कल्चरल फेज। इसके बाद आ जाता है महाजनपदा एरा। ठीक है, दिस इज व्हाट, सेकेंड अर्बनाइजेशन फेज। इंडस वैली सिविलाइजेशन इज व्हाट, फर्स्ट अर्बनाइजेशन फेज। ठीक है, पहले इतना ट्रेस आउट कर लेते हैं, देन विल इंटर द सेकेंड पार्ट। इसके बाद आएंगे स्टोन एज में क्या लोग कॉइन्स यूज करते थे, यस और नो? नो, द पीपल वर नॉट यूजिंग कॉइन्स। ठीक है ना, हाँ, दिस माइट बी अ प्रोबेबिलिटी दैट स्टोन एज के भी 3 डिफरेंट फेजेस है। ठीक है, अर्लीस्ट फेज इज पैलेलिथिक, देन मेसोलिथिक, देन ओके नियोलिथिक। तो कुछ फैक्ट्री साइट्स भी मिली है, फैक्ट्री साइट्स स्टोन एजेस में मिली है। इट मींस कि जहां पे स्टोन टूल्स एंड इंप्लीमेंट्स वेर मेड इन लार्ज नंबर्स, दैट इज कॉल्ड फैक्ट्री साइट्स, जहां पे लार्ज नंबर में आप बनाए। तो लार्ज नंबर में स्टोन टूल्स एंड इंप्लीमेंट्स अगर कोई ग्रुप बना रहा है तो क्यों बना रहा है? जैसे मान लो कि हिली एरियाज में आप हो, वहां स्टोन टूल्स एंड इंप्लीमेंट्स बना रहा है, तो यू नीड व्हाट, एनिमल मीट। ठीक है, टू सर्वाइव, यू नीड फ्रूट्स टू सर्वाइव। ठीक है, तो जो लोग हंटिंग कर रहे हैं वो आपके पास आएंगे, ओके, दे विल गिव यू एनिमल मीट्स, दे विल गिव यू फ्रूट्स, और बदले में वो आपसे क्या ले जाएंगे, दे विल टेक स्टोन टूल्स एंड इम्प्लीमेंट। सो देयर इज अ ग्रेटर प्रोबेबिलिटी कि स्टोन एज का जो लेटेस्ट फेज था
एडवांस स्टेज था, उसमें कहीं ना कहीं बार्टर सिस्टम जैसी कोई चीज एग्जिस्ट कर रही थी। दिस वी कैन इजीली से, हम कह सकते हैं। ठीक है, जैसे इस तरह की इंडस्ट्रीज हमें मिली हैं स्टोन एजेस में, आपको बताऊंगा। तो स्टोन एजेस में यू कैन राइट दिस दैट द एडवांस फेज ऑफ स्टोन एज, advanced phase of in advanced phase of stone ages, okay, barter system barter system was practiced, barter system was practiced, advanced phases of stone ages barter system practice होता था, ये बात हम कह सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, अब आप आ जाओ कैलकोलिथिक पीरियड में। कैलकोलिथिक पीरियड में क्या है, यूज ऑफ कॉइन्स, कैलकोलिथिक सॉरी यूज ऑफ कॉपर Indus, it means this is a metal culture, metal using culture. So this is the advanced phase. और advanced phase होने के साथ साथ क्या है, this is civilization. We are using this word civilization. Civilization means what? Urban trade, prosperous, internal trade, external trade, यहाँ तक कि इनका ट्रेड एंड कॉमर्स किसके साथ हो रहा है, मेसोपोटामिया के साथ भी हो रहा है। मेरी बात समझ गया ना? इंटरनेशनल ट्रेड भी है, मैरीटाइम ट्रेड भी है, देयर आर इंपॉर्टेंट पोर्ट सेंटर्स आल्सो। दिस फेज ऑफ फर्स्ट अर्बनाइजेशन इन इंडिया, इंडिया में ये फर्स्ट अर्बनाइजेशन का फेज है। गॉट इट? इंडस वैली सिविलाइजेशन फेज। बट द क्वेश्चन इज, अच्छा इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में हमारे पास कोई रिटन डॉक्यूमेंट है क्या? है रिटन डॉक्यूमेंट, बट वी फेल टू डिसिफरेट, हम इसे पढ़ नहीं पाए। तो आवर इंटायर सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन और नॉलेज इज बेस्ड ऑन आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस, और आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस से कहीं भी हमें कॉइन्स का कोई एविडेंस नहीं मिलता है। सो इट्स वेरी क्लियर दैट आईवीसी पीपल वेर ऑल्सो नॉट यूजिंग कॉइन्स, कॉइन्स वेर ऑल्सो नॉट यूज्ड हियर। ठीक है, दे वर ऑल्सो डूइंग सम काइंड ऑफ बार्टर सिस्टम। ठीक है, अच्छा आईवीसी पीपल वेर फेमिलियर विथ गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, ब्रॉन्ज, मेटल अलॉयज भी तो बनाते थे ना, आपको बताया मैंने, ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन भी इसको कहते हैं। तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि जो प्रीसियस मेटल्स हैं, ठीक है, उनको यूज करके ट्रेड एंड कॉमर्स कर लो, बट देयर वाज नो एनी कॉन्सेप्ट लाइक द यूज ऑफ कॉइन्स। दिस इज वेरी क्लियर। नाउ वी कम टू द वैदिक पीरियड। अब हम आते हैं वैदिक पीरियड में। वैदिक पीरियड, नाउ वैदिक पीरियड इज व्हाट? दिस इज वैदिक कल्चरल फेज। ये क्या है? वैदिक कल्चरल फेज। दिस इज अर्बन फेज और रूरल फेज। तो दिस इज रूरल फेज, ये रूरल फेज है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अर्बनाइजेशन है, महाजनपद एरा इज द सेकंड अर्बनाइजेशन, बट बीच का फेज क्या है? रूरल फेज। ठीक है, बट इन रूरल फेज वी गेट सम वर्ड्स इन ऋग्वेदा, कुछ रेफरेंस मिलता है कुछ वर्ड्स का। राइट दिस, रेफरेंस ऑफ अ फ्यू वर्ड्स फ्रॉम ऋग्वेदा, कुछ वर्ड्स मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल निशक एंड निशक ग्रीवा, निशक, निशक एंड निशक ग्रीवा। देखो ये जो मैं आपको बता रहा हूं, दिस इज लेटेस्ट हिस्टोरिकल डेवलपमेंट्स। ठीक है ना, पुरानी बुक्स हिस्ट्री के पढ़ोगे वहां वो बता देंगे कि वैदिक कल्चर में कॉइन्स का यूज होता था, तो वैदिक कल्चर में कॉइन्स का यूज नहीं होता था। देखो क्या था, निशक एंड निशक ग्रीवा का जो मतलब समझा गया काफी रिसर्चेस के बाद। शतमान और पद लेटर वैदिक पीरियड में, देखो ऋग वैदिक पीरियड में दीज वर्ड्स आर फाउंड, लेटर वैदिक पीरियड सम अदर वर्ड्स आर फाउंड। राइट दिस, यहाँ पे कुछ और वर्ड्स मिलता है लेटर वैदिक पीरियड। द वर्ड्स आर राइट, सुवर्ण, सॉरी निशक, सुवर्ण, शतमान एंड पद। निशक, निशक, सुवर्ण, शतमान एंड पद। निशक, सुवर्ण, शतमान एंड पद, ये सारे वर्ड्स कहाँ मिलते हैं? लेटर वैदिक पीरियड। ठीक है, अब मैंने बताया ना कि हिस्ट्री में डिसएग्रीमेंट की भी जगह होनी चाहिए। तो कुछ हिस्टोरियंस ने कहा कि इसमें जो निशक है, निशक ग्रीवा है, कुछ लोगों ने इनको कॉइन्स के साथ रिलेट कर दिया। देखो इंटरेस्टिंग बात क्या है कि निशक इज अ काइंड ऑफ नेकलेस, ये क्या है? नेकलेस है। ठीक है, ठीक है, एंड ग्रीवा मीन्स व्हाट? गर्दन, नेक, जिसको पहना जाता है। निशक ग्रीवा, इट मीन्स निशक ग्रीवा वॉज अ काइंड ऑफ ऑर्नामेंट। ये क्या था? ऑर्नामेंट था। मेरी बात समझ गया ना? दैट वॉज वोर इन द नेक, जिसको गले में पहना जाता था।
तो इट वॉज नॉट कॉइन, ये कॉइन नहीं था, ये कॉइन नहीं था, ठीक है। लेटर वैदिक पीरियड में भी निशक वर्ड आया है, बट दिस इज नॉट कॉइन, दिस इज ऑल्सो नॉट कॉइन, ठीक है। अब देखो इसके बाद जो वर्ड्स हैं सुवर्ण, शतमान और पद, जब आप आगे के फेजेस में आओगे, गॉट इट, मौर्यन पीरियड वगैरह में आओगे, तो द सेम वर्ड्स आर यूज्ड फॉर द कॉइन्स। ध्यान से समझना मैं क्या कह रहा हूं। इन लेटर वैदिक पीरियड वी फाइंड दीज वर्ड्स, but in later Vedic period or Vedic period, these words do not suggest the use of coins in this period. तो what is the conclusion? कंफ्यूज नहीं होना है, लेटर वैदिक पीरियड के कॉन्टेक्स्ट में नो यूज ऑफ कॉइन्स, वी फाइंड दीज वर्ड्स, आगे चल के इसी का मतलब सिक्का हो जाएगा, कॉइन हो जाएगा, बट यहाँ पे क्या है, नो यूज ऑफ कॉइन, बिकॉज ये बिल्कुल साइंटिफिक है, ठीक है। हिस्टोरियंस ने अपनी स्टडी की है, उसके बेसिस पे उनका इंटरप्रिटेशन है। तो यू कैन राइट हियर दैट दीज वर्ड्स इन लेटर वैदिक पीरियड और ओवरऑल वैदिक पीरियड डज नॉट सजेस्ट द यूज ऑफ कॉइन्स, ये यूज ऑफ कॉइन्स को सजेस्ट नहीं करता, ठीक है। they does not suggest the use of coins। अच्छा देखो, आगे चल के यही चीज coins का नाम हो जाती है ना, यहाँ पे coins नहीं है, हो सकता है ये मेटल का बना हुआ, ठीक है, किसी डेफिनेट वेट का बना हुआ, ठीक है, मेटल का बना हुआ, ठीक है, कोई पीस, बट ये फुल फ्लेज कॉइन नहीं था वैदिक कल्चरल फेज में। दिस माइट बी अ प्रोबेबिलिटी दैट दिस मे बी अ मटेरियल मेड अप ऑफ मेटल, ठीक है। जैसे सुवर्ण है तो हो सकता है गोल्ड का हो, मेरी बात समझ गया ना, सुवर्ण गोल्ड का कोई मटेरियल हो सकता है, सुवर्ण मतलब स्वर्ण लोग समझ लेते हैं, तो सुवर्ण मतलब गोल्ड का कोई मटेरियल हो सकता है, बट इट वाज नॉट अ फुल फ्लेज्ड कॉइन, ठीक है, फुल फ्लेज कॉइन नहीं था, मेरी बात समझ गया ना। तो नो यूज ऑफ कॉइन्स, नो फुल फ्लेज्ड कॉइन्स, no full-fledged coins during the Vedic period। Vedic period में तो कोई full-fledged coin नहीं, no full-fledged coins during the Vedic period, ठीक है। Now we are coming to the next phase। Next phase क्या है, महाजनपदा era, महाजनपदा era after Vedic culture। The next phase is महाजनपदा era, महाजनपद era। This is the state formation era also ना, state formation era। अंगुत्तर निकाय mentions how many महाजनपद, 16 महाजनपद। ये प्रीलिम्स का इंपॉर्टेंट फैक्ट है, अंगुत्तर निकाय इज अ बुद्धिस्ट टेक्स्ट, यहीं पे लिख लो, जो इंपॉर्टेंट है उसको लिखते चलो, और क्या करना है, बॉक्स में प्रीलिम्स वाले फैक्ट्स को हाईलाइट करके और अलग कलर से मार्क कर देना उसको, ठीक है ना, इन योर नोट्स इटसेल्फ। तो द सेम नोट्स विल बी यूज्ड फॉर द रिवीजन पर्पस आल्सो। तो अंगुत्तर निकाय इज अ बुद्धिस्ट टेक्स्ट, अंगुत्तर निकाय is a Buddhist text which mentions 16 Mahajanpads, ठीक है, तो ये more authentic है। There are other texts also which mention different number of Mahajanpads, ठीक है, बट अंगुत्तर निकाय का जो मतलब रेफरेंस है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है, ठीक है। अब देखो क्या है, अब महाजनपद era, it is also the phase of second urbanization, new urban centers were developing, big states were there। तो इन दिस फेज द अर्लीस्ट कॉइन्स आर फाउंड इन इंडिया, यहाँ पे पहली बार क्या होता है, we see the, exactly, we see the earliest coins, and these earliest coins are the punch marked coins in India, PMCs, write this, earliest coins are found in India and they are PMCs, punch marked coins। हाँ जी, नहीं, right, earliest coins are found in India and these earliest coins are what, PMCs, punch marked coins, ठीक है ना, अर्लीस्ट coins in India, ठीक है। पंच मार्क्ड क्यों कहते हैं, some marks or impressions were punched upon, ठीक है, the surfaces, वो surface किसी भी चीज का हो सकता है, तो that's why this is called punch marked coins, ठीक है ना। बुद्धिस्ट टेक्स्ट रेफर सम काइंड ऑफ वर्ड्स, ठीक है। अब ये पूरा का पूरा टॉपिक हमें पढ़ना है, पंच मार्क कॉइन्स की स्टोरी, ओके, वी विल डिस्कस दिस इन आवर क्लासेस, पंच मार्क कॉइन्स, ठीक है। या चाहो तो थोड़ा बहुत इसमें लिख भी सकते हो, यू कैन राइट दिस दैट अर्लीस्ट कॉइन्स, पंच मार्क कॉइन्स, दे वर मेड अप ऑफ सिल्वर एंड कॉपर, silver and copper, earliest coins punch marked coins, okay, silver and copper, right। गोल्ड कॉइन्स आर वेरी रेयर एंड देयर ऑथेंटिसिटी इज डाउटफुल, ठीक है, गोल्ड कॉइन्स आर वेरी रेयर
and their authenticity is doubtful. तो हम इसमें gold coins को count नहीं कर रहे हैं. Got it? Gold coins are very rare and their authenticity is doubtful. Gold coins were very rare and their authenticity is doubtful. ठीक है, एक और फैक्ट लिख सकते हो यहाँ कि इंडो ग्रीक्स were the first to issue gold coins in India. Indo Greeks were the first to issue gold coins in India. Indo Greeks कौन लोग हो गए, याद आ गया? लेटर मौर्यन पीरियड. ISP के Indo Greeks were the first to issue gold coins in India. ठीक है, राइट. नेक्स्ट पॉइंट. Indo Greeks were the first to issue gold coins in India. Right, next point. Kushanas issued gold coins in largest numbers. Kushanas issued gold coins in largest numbers. Kushanas issued gold coins in largest numbers. ठीक है, राइट. नेक्स्ट पॉइंट. लेड बेस्ड coins, शीशे के सिक्के. लेड बेस्ड coins, शीशे के सिक्के. All these are the glimpse facts or information. Lead based coins, शीशे के सिक्के, were issued first by the Satvahana rulers. ठीक है, right? They were issued by the Satvahana rulers. Issued by the Satvahana rulers. ठीक है ना? Lead based coins were issued by Satvahana rulers. Lead based coins were issued by the Satvahana rulers. ठीक है ना? Lead based coins were issued by the Satvahana rulers. Right, next point. Indo-Greek coins had some beautiful artistic features on them. Indo-Greek coins show beautiful artistic features on them. Indo-Greek coins show beautiful artistic features on them. Beautiful artistic features on them. ठीक है, और यहाँ पे लिख सकते हो ऐसे. One part you can write observed side and the second part is reverse side. Observed side and reverse side. ठीक है, Indo-Greek coins, ठीक है, has beautiful artistic features on that. ठीक है, observed side means सामने का हिस्सा, reverse means back side. ठीक है ना, observed side, right? Portrait of the king on the observed side. यानी कि अब coins पे क्या हो गया, portrait of the kings, ये भी बनने लगा on the observed side. Portrait of the kings on the observed side. अच्छा, reverse side में क्या है? So right, some deity is depicted on the reverse side. Some deity were depicted on the reverse side. Some deities were depicted on the reverse side. तो ये artistic creation हो गया. Got it? अच्छा, coins are important source of historical information. We can say this or not? Yes. How we can say this? देखो, on the basis of the Indo-Greek coin, historians reached at a conclusion that in northwestern part of India, more than 40 Indo-Greek rulers have ruled. अलग अलग सिक्के मिल गए, अलग अलग सिक्के पे अलग अलग हीरो का चेहरा था, तो इससे आपको पता चला. तो coins are important source of historical information. Yes, so you can write here that coins are important source of historical information. It is proved by the fact that coins are important source of historical information. Here, it's proved by the fact that it's proved by the fact that it's proved by the fact that important source of historical information. It's proved by the fact that, okay, by these coins historians came to know that, by these coins historians came to know that, by these coins historians came to know that in northwestern part of India, more than 40 Indo-Greek rulers have ruled. In northwestern part of India, more than 40 Indo-Greek rulers have ruled. ठीक है, more than 40 Indo-Greek rulers have ruled. ठीक है. Now, Kushanas के बारे में मैंने क्या बताया? They issued gold coins in the largest number. They mostly issued the gold coins. ठीक है, सबसे ज्यादा गोल्ड कॉइन इशू किया. ये भी लिख सकते हो, दे मोस्टली इशूड द गोल्ड कॉइन्स. अगर कुशान ने सबसे ज्यादा अगर कोई सिक्के रिलीज किए तो वो गोल्ड कॉइन्स थे. दे मोस्टली इशूड द गोल्ड कॉइन्स. दे इशूड द गोल्ड कॉइन्स इन लार्जेस्ट नंबर. दे मोस्टली इशूड द गोल्ड कॉइन्स. ठीक है ना. अब जैसे देखो, विम कडफिसस वाज अ कुशान रूलर. ये कुशान रूलर है.
ठीक है, और इसके सिक्के पे हम क्या देखते हैं, वी सी दैट द कॉइन्स बियर द फिगर ऑफ द शिवा स्टैंडिंग बिसाइड अ बुल। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि कुशाना रूलर आर आउटसाइडर्स, आईएसपी के इंडो ग्रीक सक फेलो कुशान, एंड दे आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द इंडियन फिलोसफी, इंडियन रिलीजियस ट्रेडिशंस, ये पता चल रहा है। तो देखो इससे हमें रूलर्स का रिलीजियस आउटलुक भी पता चल रहा है। तो कॉइन्स इंपॉर्टेंट हो गए कि नहीं, इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन, यस। तो लिख सकते हो द कॉइन्स बियर, द कॉइन्स बियर द फिगर ऑफ शिवा स्टैंडिंग बिसाइड अ बुल, फिगर ऑफ शिवा स्टैंडिंग बिसाइड अ बुल, ठीक है, फिगर ऑफ शिवा स्टैंडिंग बिसाइड द बुल। अच्छा देखो बुल जो है ना, ठीक है, लायन एंड बुल, दिस विल अपीयर सेवरल टाइम्स इन एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री। जैसे एक क्वेश्चन है, एक बॉक्स में लिखो, यूपीएससी का क्वेश्चन है, ताकि जहां जहां पढ़ाता रहूं लायन और बुल जहां जहां आए वो अपना दिमाग आप खुला रखोगे, राइट। अ क्वेश्चन इज discuss the significance of the lion and bull figures in Indian mythology, art and architecture. Discuss the significance of लायन एंड बुल फिगर। अब पूरे एंशिएंट इंडिया में जहां जहां लायन और बुल आए, क्या करना है, दिमाग खुला रखना है। डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ लायन एंड बुल फिगर इन इंडियन माइथोलॉजी, आर्ट एंड आर्किटेक्चर, 2022, 2022, 2022। यहां पे क्या आ गया, शिवा स्टैंडिंग बिसाइड अ बुल, मेरी बात समझ गया ना। और इससे क्या पता चलता है, रिलीजियस आउटलुक, ठीक है। रिलीजियस आउटलुक क्या है कि द लीजेंड ऑफ दिस क्वींस किंग विमकटफिशस कॉल्स हिमसेल्फ महेश्वरा, ठीक है, डिवोटी ऑफ शिवा, ही वाज द डिवोटी ऑफ शिवा, रूलर इज कॉलिंग हिमसेल्फ द डिवोटी ऑफ शिवा, ये खुद को क्या कह रहा है, डिवोटी ऑफ शिवा, विमकटफिशस, ठीक है, ओके, गॉट इट। इसके बाद देखो, देयर आर टू इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स जहां मैं अभी डिटेल में नहीं जा रहा हूं। एक तो है कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में जिन पॉइंट्स के बारे में डिटेल से बताया, ठीक है, वो आगे हम पढ़ेंगे अपनी क्लासेस में। एक वहां पे लिख लो, एक एस्पेक्ट लिख लो, एस्पेक्ट इज राइट, ओके। द डिटेल्स ऑफ द coinage system that is given in the Kautilya's Arthashastra will be discussed later in the class. Details of the coinage system given in the Kautilya's Arthashastra, ठीक है। और हम क्या डिटेल में डिस्कस करेंगे, राइट, डिटेल्स ऑफ पीएमसीज ड्यूरिंग द महाजनपद एरा विल बी डिस्कस्ड इन द क्लास में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे मैं बहुत ज्यादा एक्सटेंशन नहीं ले रहा हूँ, बिकॉज वी आर रीडिंग सोर्सेज ओनली, ठीक है ना। डिटेल्स ऑफ पीएमसीज ड्यूरिंग द महाजनपदा पीरियड विल बी डिस्कस्ड इन द क्लास। इसी तरह से डिटेल्स ऑफ मौर्यन पीरियड कॉइन्स विल बी डिस्कस्ड इन द क्लास, मौर्यन पीरियड कॉइन्स विल आल्सो बी डिस्कस्ड इन द क्लास, ठीक है, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, ओके। अब आपको कुछ मैं नेम्स बताऊंगा, कुछ टर्मिनोलॉजीज बताऊंगा, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड। जैसे व्हाइल रीडिंग द एंशिएंट इंडिया बुक्स यू विल फाइंड टर्मिनोलॉजीज लाइक दिस, आपको ऐसे टर्मिनोलॉजी मिलेंगे, तक्षशिला गांधारा टाइप ऑफ कॉइन्स। इसका मतलब क्या है, जो उस पार्टिकुलर एरिया से मिला है, तो आपने क्या कह दिया, तक्षशिला गांधारा टाइप ऑफ कॉइन्स, मगध टाइप ऑफ कॉइन्स, अवंती टाइप ऑफ कॉइन्स। व्हाट डज इट मीन्स, these coins were discovered from that particular area, तो उसके बेसिस पे हमने नाम दिया। इन द सेम वे यू विल गेट द वर्ड्स लाइक inscribed coins and uninscribed coins, मतलब समझ गया ना, inscribed coins मतलब जिसपे कुछ लिखा हुआ है, that is what coin inscription, inscribed coin क्या हो जाएगा, coin inscription, and uninscribed coin क्या हो जाएगा, nothing has been inscribed, nothing has been written, that is uninscribed coins, ठीक है ना। in the same way you will get the name of die struck coins, ठीक है ना, काउंटर स्ट्राइक पॉइंट्स, इस तरह के वर्ड मिलेंगे। जैसे काउंटर स्ट्राइक का मतलब ये हो गया कि जैसे मान लो कि विपिन इज अ रूलर एंड ही हैज इशूड पॉइंट्स, ठीक है, एंड सपोज नेक्स्ट द नेक्स्ट रूलर इज हेमंत और शताक्षी और पूजा, कोई भी, और उन्होंने क्या किया, दे इशूड कॉइन्स ऑन द सेम मॉडल दैट इज बेस्ड ऑन द कॉइन्स इशूड बाय द विपिन, मतलब उसी मॉडल को आपने कॉपी करके दोबारा कॉइन्स इशू कर दिए, तो इनको हम क्या कहेंगे, काउंटर स्ट्राइक कॉइन्स, ठीक है ना, कि रीप्रिंटिंग द सेम मॉडल, री इशूइंग द सेम मॉडल, उसको हम क्या कहते हैं, काउंटिंग स्ट्राइक, काउंटर स्ट्राइक कॉइन्स।
तो ऐसी बहुत सारी कैटेगरीज हैं। बट एक क्वेश्चन आया था गुप्ता पीरियड में, है ना? तो गुप्ता पीरियड में लेट्स यू कैन राइट अ फ्यू थिंग्स हियर। गुप्ता पीरियड, गुप्ता पीरियड कॉइन्स तो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे ही। गुप्ता पीरियड कॉइन्स में कुछ पॉइंट्स यहाँ पे आप चाहो तो लिख सकते हो, ठीक है? गुप्ता पीरियड में भी देखो, देयर आर टू फेजेस ड्यूरिंग द गुप्तास, ठीक है ना? इनिशियल फेज में क्या है? इन इनिशियल फेज वी सी दैट देयर इज इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, एंड इन लेटर फेज ऑफ गुप्तास द इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी डिक्लाइन। और हिस्टोरियंस ने ये बात कैसे पता लगाई? तो लुकिंग एट द कंटेंट इन दीज कॉइन्स, कि जो सेकेंड फेज है गुप्ता रूलर्स का, वहां पे गोल्ड कंटेंट का जो अमाउंट गोल्ड कंटेंट है वो क्या हो गया? रिड्यूस हो गया। तो लोगों ने कहा कि इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी में कमी आई है, और उसके और भी कई सारे कारण थे, दैट विल डिस्कस इन आवर क्लासेस, ठीक है? कि क्यों ये इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी कम हुआ, ठीक है? बट गुप्ता पीरियड में वी सी इंपॉर्टेंट कॉइन्स, राइट दिस, गुप्तास coins during the Guptas, right? They issued well executed die struck gold coins. Gold coins, dinars हैं, dinars हैं. You will find this word dinars. Dinar is used for the gold coins, ठीक है? Dinars. Right, next point. Observe, अभी मैंने बताया ना कि reverse and observe. Observe means front side and reverse side, बताया ना, है ना? तो write this on observe side. Observe side of the coins. Observe side of the coins we see, right, the images of the kings depicted in different poses, depicted in different poses, right, next point, depicted in different poses, ठीक है ना? Right, next point, okay. Samudragupta and Kumargupta one, Samudragupta and Kumargupta one were shown playing veena. Samudragupta and Kumargupta one were shown playing veena, प्लेइंग वीणा। तो बताओ इससे रूलर का हमें वो हॉबी पता चलता है कि नहीं? समुद्रगुप्त एंड कुमारगुप्त वेर सोन प्लेइंग वीणा, राइट, नेक्स्ट पॉइंट, ओके। रिवर्स साइड ऑफ द गुप्ता कॉइन्स, रिवर्स साइड ऑफ द गुप्ता कॉइन्स, रिवर्स साइड ऑफ द गुप्ता कॉइन्स हैव religious symbols. Reverse side of the Gupta coins have religious symbols. Reverse side में क्या है? Religious symbols है, which indicates the inclination, which indicates the religious outlook of that particular ruler, which indicates the religious outlook of that particular ruler. Right, next point. Guptas also issued silver coins. Gold coins are called dinar, ठीक है ना? पहले ही लिख चुके हो आप, ये भी प्रीलिम्स का क्वेश्चन है, दिस इज एमसीक्यू। दिनार क्या है? गोल्ड कॉइन्स, ठीक है ना? राइट, गुप्ता रूलर्स also issued silver coins, also issued silver coins, also issued silver coins, ठीक है ना? Right, next point. The copper coins are very rare during the Guptas. Copper coins are very rare during the Guptas. Copper coins are very rare during the Guptas. Right, next point. During the latter phase of the Gupta rulers, during the latter phase of the Gupta rule, particularly Skandagupta reign or period, during the latter phase of the Gupta ruler, particularly Skandagupta's time. Skandagupta was a Gupta ruler, okay? During the latter phase of the Gupta ruler, particularly Skandagupta time, the gold content declined, or we can say that the metallic purity of the gold declined. The gold content declined, or we can say that the metallic purity of the gold was declined. Gold content declined, or we can say that the metallic purity of the gold was declined. This also shows the decline in economic prosperity. This also shows the decline in economic prosperity. Decline in economic prosperity in the later phase of the Guptas. Okay, in the later phase of the Guptas. Got it?
in the later phase of the Guptas. Okay. Right, next point. Okay. ये बात आपको समझ में आई। इसके बाद देखो गुप्ता पीरियड के बाद का जो फेज है, जैसे मान लो कि अगर हम ये वाला टाइम पीरियड ले लें 6-7 सेंचुरी एडी से लेकर 11 सेंचुरी एडी तक, ठीक है ना। ये फेज जो है, जैसे एक तो ये हो गया, ठीक है, एंशिएंट इंडिया, दिस पीरियड विल बी कॉल्ड अर्ली मिडिवल, दिस पीरियड विल बी कॉल्ड अर्ली मिडिवल। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, बिना डिटेल में गए हुए। तो गुप्ता पीरियड तक आते आते जो क्वाइनेज सिस्टम है ये अपनी एक्सलेंट हाइट्स पे था। एंशिएंट इंडिया में क्वाइनेज सिस्टम डेवलपमेंट स्टार्टेड फ्रॉम द महाजनपदा एरा, पंचमार्क कॉइन से शुरू हुआ, एंड एक्सलेंट हाइट वाज रीच ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड। गुप्ता पीरियड के फर्स्ट हाफ में कि लेटर हाफ में? फर्स्ट हाफ में एक्सलेंट हाइट्स, ठीक है ना, एक्सलेंट हाइट्स वाज रीच। बट सेकेंड फेज में क्या होता है, गोल्ड कंटेंट डिक्लाइंस, और इसके बाद द क्वाइनेज सिस्टम, ठीक है, यहां पे क्या होता है, डिक्लाइन इन क्वाइनेज सिस्टम, अर्ली मेडिवल फेज में डिक्लाइन इन क्वाइनेज सिस्टम, ठीक है ना। फ्यूडल ऑर्डर है आपको पता है, ठीक है। फिर इस पूरे के पूरे फेज में अर्बन सेंटर्स डिक्लाइन करते, ट्रेड सेंटर्स डिक्लाइन करते, ठीक है। या इन अर्ली मेडिवल व्हाट वी सी, डिक्लाइन इन अर्बन सेंटर्स, डिक्लाइन इन ट्रेड सेंटर्स, ठीक है, डिक्लाइन इन ट्रेड एंड कॉमर्स। तो यहाँ पे क्या होगा, डिक्लाइन इन क्वाइनेज सिस्टम आल्सो, डिक्लाइन इन क्वाइनेज सिस्टम आल्सो। और फिर ये क्वाइनेज सिस्टम में दोबारा जो रिवाइवल शुरू होगा वो कब से शुरू होगा, 11th 12th century onwards we see again the revival of coinage system, we see again the revival of coinage system, ठीक है। 11th 12th century onwards we again see the revival of coinage system, we again see the revival of coinage system। वो coinage system का revival देखते हैं। जैसे आप वो एक क्वेश्चन मैंने coins पे जो बताया था, देखो यूपीएससी में जब भी क्वेश्चन आता है ना, तो क्वेश्चन डज नॉट मीन कि आप उससे जुड़े हुए सारे फैक्ट्स और इन्फॉर्मेशन अपने आंसर में लिखो। एग्जामिनर ये जानना चाहता है कि ये जो पूरा का पूरा होलिस्टिक थीम है, इस थीम से आप फेमिलियर हो कि नहीं हो। जैसे जो क्वेश्चन मैंने लिखवाया था आपको, रीड द क्वेश्चन अगेन, दोबारा से क्वेश्चन पढ़ो, ठीक है। हाउ डू यू जस्टिफाई द व्यू दैट द लेवल ऑफ एक्सीलेंस ऑफ गुप्ता न्यूमिस्मेटिक आर्ट इज नॉट एट ऑल नोटिसेबल इन लेटर टाइम्स। कैसे जस्टिफाई करोगे कि जो लेवल ऑफ एक्सीलेंस है गुप्ता न्यूमिस्मेटिक आर्ट्स का, ये बाद के टाइम में, ठीक है ना, नोटिसेबल नहीं रहा। इसका मतलब वहां पे क्या हो गया, डिक्लाइन हो गया। अब सपोज आपने एक स्केच ड्रॉ कर दिया अपने आंसर में, और स्केच कैसा ड्रॉ किया, ऐसे सिंपली देखो, आपने एक सिंपल स्केच ड्रॉ किया, स्टोन एज, आईवीसी, वैदिक पीरियड, महाजनपदा एरा, ऐसे आपने ड्रॉ किया। यहां लिख दिया यूज ऑफ कॉइन्स, नहीं नहीं नहीं, महाजनपद यू विल राइट हियर पीएमसीज, पंचमार्क कॉइन्स। और यहां से क्या होता है, डेवलपमेंट ऑफ कॉइनेज सिस्टम। तो वी कैन ट्रेस आउट द डेवलपमेंट ऑफ कॉइनेज सिस्टम, डेवलपमेंट ऑफ कॉइनेज सिस्टम हम किस टाइम पीरियड से ट्रेस आउट कर सकते हैं, महाजनपदा एरा से। कितना अच्छा कॉन्सेप्ट है। फिर मौर्यन पीरियड में ये और डेवलप होगा, लेटर मौर्यन फेज में ये और डेवलप होगा, गुप्ता पीरियड में जाके ये अपनी एक्सीलेंट हाइट्स पे पहुंच जाएगा। बट लेटर फेज ऑफ गुप्ताज में क्या होगा, गोल्ड कंटेंट डिक्लाइन होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, डिक्लाइन, डिक्रीज, डिक्लाइन। और अर्ली मेडिवल फेज में आते आते ये क्या हो जाएगा, ओके, और डिक्लाइन कर जाएगा। रिवाइवल फिर से कब से है, तो 11 12 सेंचुरी ऑनवर्ड्स यहाँ पे क्या है, कॉइनेज सिस्टम का रिवाइवल। गॉट इट, आप समझ पाए कि नहीं। मेरिट्स क्या है, जैसे कॉइन्स पे कुछ लिखा हुआ है तो वो क्या हो गया, कॉइन इंस्क्रिप्शन हो गया। अब इसके मेरिट्स देखो, ठीक है, मेरिट्स क्या है, व्हाट आर द मेरिट्स, कॉइन्स के मेरिट्स क्या है, ठीक है। तो कॉइन्स क्या क्या चीजें बता सकता है हमें, बताओ। पॉइंट वन, कॉइन्स से हमें क्या पता चलता है, राइट, अबाउट ट्रेड एंड कॉमर्स, हिस्ट्री ऑफ एक्सचेंजेस, हिस्ट्री ऑफ ट्रेड, हिस्ट्री ऑफ एक्सचेंजेस, हिस्ट्री ऑफ ट्रेड, इसके बारे में हमें कॉइन्स से पता चलता है। अच्छा, अगर कॉइन्स है तो हम एक्सटर्नल ट्रेड था कि नहीं ये भी इजीली वेरीफाई कर सकते हैं। अगर हमारे कॉइन्स किसी और कंट्री में मिलना है, इसका मतलब हमारा उनके साथ ट्रेड रिलेशन था। तो ट्रेड एंड कॉमर्स के बारे में अच्छी जानकारी देता है, मैरीटाइम ट्रेड और एक्सटर्नल ट्रेड है या नहीं, ठीक है, इस चीज की जानकारी भी हमें कॉइन से मिल जाती है, ठीक है ना, कि वेदर
we are doing some kind of maritime trade or external trade or not, okay, this we can easily get, ठीक है ना, ये पता चल जाता। अच्छा, economic prosperity of a particular phase we can easily get, कि किस फेज में इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, जैसे कुशानाज ने क्या किया, दे इशूड मोस्टली गोल्ड कॉइन्स, इसका मतलब कुशाना पीरियड लेटर मौर्यन फेज में वाज द फेज ऑफ इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी। तो याद रखना मौर्यन पीरियड के बाद जो लेटर मौर्यन फेज है, यहाँ पे कोई एक सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है, बट दिस इज द फेज ऑफ इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, जो गुप्ता पीरियड में और बढ़ेगी, गॉट इट। तो कॉइन्स गिव अस एन आइडिया अबाउट अ फेज, दैट वो फेज क्या था, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी वहां पे थी या नहीं थी, ठीक है। अच्छा, कॉइन है तो हमें मेटलर्जिकल एक्टिविटीज के बारे में भी बताता है, गॉट इट। इट ऑल्सो टेल्स अस अबाउट द मेटलर्जिकल एक्टिविटीज। अच्छा बताओ, जिस रूलर के टाइम में, जिस टाइम पीरियड में ज्यादा मेटलर्जिकल एक्टिविटीज होंगी, तो मेटलर्जिकल एक्टिविटीज आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, ओके, प्रोग्रेसिव माइंडसेट आउटलुक ऑफ द रूलर और नॉट, प्रोस्पेरिटी ऑफ द स्टेट और नॉट। हाँ, अगर मेटलर्जिकल एक्टिविटीज है, इसका मतलब वो डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज को दिखला रहा है, और इससे हमें क्या होता है, उस एज की जानकारी मिल जाती है, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, इंस्क्राइब्ड कॉइन्स और अनइंस्क्राइब्ड कॉइन्स, दो चीजें मैंने कही थी। तो इन इंस्क्राइब्ड कॉइन्स, ओके, समथिंग हैज बीन रिटन, दैट इज अ काइंड ऑफ रॉयल मैसेज। उस रॉयल मैसेज के बिहाफ पर हमें पॉलिटिकल हिस्ट्री की इंपॉर्टेंट जानकारी मिल सकती है। दिस वेरी सिंपल, दैट इफ द कॉइन इज इंस्क्राइब्ड कॉइन, इफ द कॉइन इज इंस्क्राइब्ड कॉइन, तो इसी को हम कहते हैं कॉइन इंस्क्रिप्शन। इट मीन्स समथिंग हैज बीन रिटन ऑन इट, वॉट एवर हैज बीन रिटन इज अ काइंड ऑफ रॉयल मैसेज, ठीक है ना। इफ द कॉइन इज इंस्क्राइब्ड कॉइन, it means something has been written on it, and anything that has been written here is in the form of a, okay, what, royal message, and it gives us the details of the political history। इसके हमें political history के बारे में पता चलता है, ठीक है। political history, religious outlook of the ruler, king's religious belief, their religious interest, religious outlook, ये भी हमें पता चलता है, ठीक है, got it। मैट्रिमोनियल रिलेशंस के बारे में भी हमें पता लगता है, राइट। नेक्स्ट पॉइंट, डिटेल्स ऑफ मैट्रिमोनियल रिलेशंस, ये भी हमें पता चलता है, डिटेल्स ऑफ मैट्रिमोनियल रिलेशंस, राइट। एग्जांपल, एग्जांपल विल इंपॉर्टेंट फॉर फिल्म्स, राइट। एग्जांपल, एग्जांपल, चंद्रगुप्त वन वाज मैरिड टू लिच्छवी प्रिंसेस, ये बात हमें कैसे पता चलता है, कॉइन्स, राइट। चंद्रगुप्त वन वाज मैरिड टू लिच्छवी प्रिंसेस, ओके, वी गेट दिस डिटेल फ्रॉम द कॉइन्स। तो मैट्रिमोनियल रिलेशंस के बारे में पता चला, Chandragupta I was married to the Lichvi princess. We get this detail from the coins. So this coin gives us the detail about the matrimonial relations. ठीक है ना? Right, next point. Okay. Genealogy of the rulers, इसके बारे में भी पता चलता है। Genealogy of the rulers, या उनका chronological order क्या है, कौन सा ruler कब rule कर रहा है, this also we know. Genealogy of the rulers or their chronological order. Right, example, example, example. Okay. देखो, एक रूलर है समुद्रगुप्त, ड्रॉ द स्ट्रक्चर, समुद्रगुप्त एंड चंद्रगुप्त टू, और इनके बीच में एक रूलर रूल कर रहा है जिसका नाम है रामगुप्त। तो इस बात की जानकारी हमें कैसे मिलती है, कॉइन इंस्क्रिप्शन से मिलती है, गॉट इट। समुद्रगुप्त, रेड दिस, अ रूलर नेम्ड रामगुप्त रूल्ड बिटवीन समुद्रगुप्त एंड चंद्रगुप्त टू। समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त टू के बीच में रामगुप्त रूल कर रहा था, इस बात की जानकारी कैसे मिलती है, हमें कॉइन्स से मिलती है। और हिस्टोरिसिटी ऑफ रामगुप्ता वो तो डिबेटेड है ही है, बट ये हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि समुद्रगुप्त एंड चंद्रगुप्त टू, इन दोनों के बीच में एक रूलर रूल कर रहा है जिसका नाम क्या है, रामगुप्त। एंड दिस इंफॉर्मेशन वी गेट फ्रॉम द कॉइन इंस्क्रिप्शंस, ये इंस्क्रिप्शन हमें कॉइन से ही मिलता है, ठीक है ना। अच्छा, अश्वमेध टाइप ऑफ कॉइन्स, ये भी एक वर्ड मिलता है, रेड दिस, अश्वमेध टाइप ऑफ कॉइन्स, इसका मतलब क्या है भाई, अश्वमेध टाइप ऑफ कॉइन्स। अश्वमेध टाइप ऑफ कॉइन्स का मतलब ये हो गया, ठीक है, कि समुद्रगुप्त और कुमारगुप्त फर्स्ट, इनके कॉइन्स पे अश्वमेध सेक्रीफाइस का इमेज बना हुआ, फोटो बना हुआ, जिसको देख के ये पता चलता है कि ये रूलर्स ने क्या किया था, सेक्रीफाइसेस को प्रमोट किया था, जिसमें अश्वमेध सेक्रीफाइस सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि इस पे अश्वमेध सेक्रीफाइस का इमेज बना हुआ है, सो दैट इज कॉल्ड अश्वमेध टाइप ऑफ कॉइन्स। मेरी बात समझ गया ना। तो दिस अगेन इज गिविंग अस the idea of particular religious belief of the
रूलर की रिचुअल्स को लेके उसका आउटलुक कैसा था. सो अश्वमेध टाइप ऑफ कॉइन्स, रेड दिस, अश्वमेध टाइप ऑफ कॉइन्स, राइट. समुद्रगुप्त एंड कुमारगुप्त फर्स्ट, ठीक है, समुद्रगुप्त एंड कुमारगुप्त फर्स्ट. अच्छा, जो अश्वमेध सेक्रीफाइस को प्रमोट कर रहा है, क्या वो ब्राह्मणिकल ऑर्डर को प्रमोट करेगा? यस. ब्राह्मण्स को पैटर्नाइज करेगा? यस. हिंदू रिलीजन को पैटर्नाइज करेगा? यस. तो इतनी सारी चीजें हमें पता चल जाती है. व्हेन यू लुक एट द अश्वमेध टाइप ऑफ कॉइन्स, यू गेट द इंफॉर्मेशन ऑफ ऑल दिस, ठीक है ना, ऑल दिस. नाउ देखो, बैटल एक्स टाइप ऑफ कॉइन्स, आर्कर टाइप ऑफ कॉइन्स, ये भी है कॉइन्स का एक टाइप है आर्कर, प्लस बैटल एक्स टाइप ऑफ कॉइन्स. बैटल एक्स टाइप ऑफ कॉइन्स, इसका मतलब जो रूलर है वो हाथ में हथियार लिए हुए दिखता है, ठीक है ना. बैटल एक्स या आर्क्स, ठीक है, आर्किस, ये सब लेके दिखता है. तो ये क्या दिखला रहा है? मिलिट्री वेलर, मिलिट्री ब्रेवरी ऑफ अ रूलर. और इसमें कौन सा रूलर आ जाएगा? समुद्रगुप्त, ठीक है. उसके सिक्कों पे, ठीक है, जैसे हीरो AK-47 लेके फोटो खिंचवाता है, वैसे ही उस टाइम का हीरो बैटल एक्स और, ठीक है, आरकेएस, तीर धनुष, ये सब लेके फोटो खिंचवा रहा है. तो दैट मीन्स मिलिट्री वेलर, ठीक है. एग्जाम्पल समुद्रगुप्ता कॉइन्स, समुद्रगुप्ता कॉइन्स, ये कैसे कॉइन्स है? बैटल एक्स, आरके टाइप ऑफ कॉइन्स. तो इससे हमें रूलर के मिलिट्री वैल्यू, मिलिट्री अचीवमेंट्स, इसके बारे में भी जानकारी मिलती है, ठीक है. एंड वीना टाइप ऑफ कॉइन्स मतलब क्या है? मतलब समुद्रगुप्त हैज पोर्ट्रेट प्लेइंग वीना, दैट इज कॉल्ड वीना टाइप ऑफ कॉइन्स, दैट इज कॉल्ड वीना टाइप ऑफ कॉइन्स. समुद्रगुप्त हैज बीन पोर्ट्रेट प्लेइंग वीना, इट इज कॉल्ड वीना टाइप ऑफ कॉइन्स, ठीक है ना. सो what do we conclude here? That whatever has been depicted on these coins, it is very much helpful in identifying that what was the particular religious preference of the ruler. उस ruler का particular religious preference क्या था, किस religious cult के प्रति उसका झुकाव था, कौन सी religious policy वो follow करता था. This all information we can derive, ठीक है ना. So this is what, okay, the coin, ठीक है. काउंटर स्ट्राइकिंग ऑफ कॉइन्स का मतलब आपको बता चुका हूँ, ठीक है, कि एक अथॉरिटी है, पॉलिटिकल अथॉरिटी, उसकी जगह दूसरा आएगा, उसी मॉडल पे दूसरा कॉइन बनाएगा, दैट इज कॉल्ड काउंटर स्ट्राइक टाइप ऑफ कॉइन्स. नाउ हैव यू अ जनरल आइडिया? आपके दिमाग में एक आइडिया आया? इफ समवन आस्क यू, जैसे क्वेश्चन तो दो, यहाँ पे दो तरह के क्वेश्चन है. अच्छा, इन क्लासेस हम डिटेल में क्या क्या डिस्कस करेंगे अभी बता दे रहा हूँ. PMCs ड्यूरिंग द महाजनपद एरा, मौर्यन पीरियड कॉइन्स, कौटिल्य अर्थशास्त्र के बेसिस पे, लेटर मौर्यन फेज में इंडो ग्रीक शकाज, पहलवास, कुशानास, ठीक है, प्लस सातवाहना कॉइन्स, देन गुप्ता कॉइन्स. क्लास में तो डिस्कस करेंगे, बट नाउ यू हैव सम आइडिया. इफ समवन आस्क यू दैट हाउ कॉइन्स प्रूव helpful in reconstruct the history of India, so you can write 150 words answer. So write a question here. ये पूछा नहीं है, but this just I am giving you for practice. Write a question. Question is how discuss how coins served as discuss how coins served as an important source. Discuss how coins served as an important source for the reconstruction of India's ancient past. Discuss how coins served as an important source for the reconstruction of India's ancient past. Got it? How coins served as the important source for the reconstruction of India's ancient past. और सबसे पहले सोचना टॉपिक्स को, जैसे मैंने कहा ना कि ये जो ट्रिक है STOP, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है थिंक एंड ऑब्जर्व फॉर यूपीएससी एंड देन प्रोसीड, ठीक है. जनरली इन स्टेट PCS एग्जाम द क्वेश्चंस आर आस्क्ड इन सच अ मैनर कि अगर आप सी एंड प्रोसीड इसी फॉर्मूला पे करना होता है. SSC एग्जाम में भी क्या करना है? सी एंड प्रोसीड. व्हेन बैटल ऑफ प्लासी वाज फॉट, 4 डेट्स दिए हुए, तो आपको पता होना चाहिए 23 जून 1757. इसमें थिंक वाला ऑप्शन है ही नहीं, ठीक है. अगर आपको नहीं पता है तो नहीं पता है, सीधी सी बात है. बट यूपीएससी क्वेश्चंस में मैं आपको क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करके दिखलाऊंगा, मैं ब्लफ नहीं मार रहा हूँ. 2020 से 2025 के हिस्ट्री क्वेश्चंस, 80% ऑफ द हिस्ट्री क्वेश्चन से स्मार्ट गेस पे कैसे हो सकते हैं मैं क्लास में बताऊंगा. 80% क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ. हाउ अ स्मार्ट गेस विल वर्क ऑन द हिस्ट्री क्वेश्चंस, 80% क्वेश्चन, ठीक है. अगर टोटल क्वेश्चन 40 होंगे ना,
तो 30 क्वेश्चंस मैं स्मार्ट गैस पे करके दिखा दूंगा, ठीक है, जिसमें आपको लगेगा अरे यार मुझे ये जानकारी नहीं थी फिर भी मैं कर ले रहा हूँ, बट वो स्मार्ट गैस कहाँ से आएगा, उसके लिए पहले पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, ऐसे नहीं आ जाएगा। तो दैट्स व्हाई वी आर डूइंग दिस पार्ट, दैट इज थिंक एंड ऑब्जर्व, एंड एट द सेम टाइम वी आर आल्सो कलेक्टिंग इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एंड इंफॉर्मेशन, ठीक है ना, वो कलेक्शन भी साथ साथ चल रहा है। तो लेक्चर के साथ साथ जैसे अभी पूरा का पूरा एक इंस्क्रिप्शन का लिस्ट है, बट अगर मैं अभी आपको वो इंस्क्रिप्शन का लिस्ट दे दूं तो आपको रट्टा मारना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। बट धीरे धीरे टॉपिक्स और थीम्स को समझते जाओगे तो एक टाइम आएगा कि वही इंस्क्रिप्शन के लिस्ट जब आप लोगे तो आपको सारी चीजें पता होगी। जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन देखते ही कहोगे अच्छा इसमें तो ये चीज है, एओल इंस्क्रिप्शन में ये है, गॉट इट, समुद्रगुप्त प्रयाग प्रशस्ति में ये है, ठीक है। तो वो बात तब आएगी जब आप टॉपिक को समझने लगोगे और फिर क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ठीक है ना। सो ऑब्वियसली दिस विल टेक टाइम, थोड़ा सा टाइम लगेगा, ठीक है। तो ऑब्वियस एग्जाम देना ही देना है, तो बेटर कि एक बार में हम थीम को फाइनल कर ले, कंप्लीट कर ले, इसी ऑब्जेक्टिव पे हम काम करेंगे। सो नेक्स्ट डे ऑल्सो द सेम टॉपिक विल बी कंटिन्यू, ठीक है। थोड़ा सा आपको आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स में आई विल टेल अबाउट द स्टोन टूल्स इम्प्लीमेंट्स, क्या क्या चीज़ें हैं उनके बारे में भी बताऊंगा, ठीक है ना। रॉबर्ट ब्रूस फूट और हैंड एक्स क्लेवर्स इन सब के बारे में बताऊंगा। तो ये वाला पार्ट हमारा हो जाएगा, देन विल कम टू द लिटरेरी सोर्सेस, लिटरेरी सोर्सेस पे भी बात करेंगे, एंड देन विल एंटर इनटू द टॉपिक, ठीक है ना। उसके बाद हम टॉपिक में एंटर करेंगे। कोई डाउट, कोई क्वेश्चन किसी को भी फ्रॉम दिस पर्टिकुलर सेशन है? नहीं? ओके, चलिए सी यू इन द नेक्स्ट सेशन, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, वेलकम।